नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज निहार के भी, और मैं हूँ उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पे। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। In Chinese, ni hao. Modi ji is in China today. He's already landed in Tianjin. So, ni hao. And he was in Japan just yesterday. So, konnichiwa for Japan. Pradeep ji. Amariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Absolutely wonderful. Now, the point is, Pradeep ji, for a dead economy, we seem to have done remarkably well. 7.8% growth in the first quarter. पहले क्वार्टर में 7.8% ग्रोथ इन जीडीपी। ट्रम्प साहब ने कहा डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी ऑल्सो एकोड द सेम थिंग। उन्होंने बाहर जाके बोला क्या है तो उसमें गलत क्या है, आपको मालूम नहीं है क्या? दिस इज व्हाट ही सेड, इट्स अ डेड इकोनॉमी। दैट्स डैम गुड फॉर अ डेड इकोनॉमी, डोंट यू थिंक? 7.8% growth. If all these international rating agencies are doing it, so everybody has to believe it. It was Modi who was saying it. They said, look, again bluffing. आप फिर वो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं, आप फिर ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। Today, International Monetary Fund, the World Bank, you talk about institutions, every institution, Ernst and Young, yesterday Ernst and Young saying you're going to Standards and Poor. Yes, they said the same thing. In spite of the trade tariffs, India is going to be the second biggest economy by 2038. $43 billion, that's what they said. And now, we will be the third largest economy by 2027. Exactly. That's what they said. I mean, look, maybe even 2026. And who's saying this? Now, if Modi ji can influence all these people, then he definitely deserves what he deserves to be Prime Minister for life. Yes, for as long as he can. Because if he can, 2014 में मोदी जी आए, वो पोल रिग था कि नहीं, वो I mean, what's all this happening? I mean, जब भी जीते तब ये, अब Indian figures, जबरदस्त splendid figures coming from world over. सभी वर्ल्ड से अब रेटिंग एजेंसीज, वर्ल्ड रेटिंग एजेंसीज, इकोनॉमिक सर्वेज, ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक सर्वेज forecasting great future for India, fastest growing economy. And if Modi ji can influence all these people, then as you said, he deserves what he is right now in. So the Americans have said that he is the one responsible for the Ukraine war. इन्होंने तो ये कह दिया कि मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर के लिए वही चला रहे हैं, वही फाइनेंस कर रहे हैं। And a US person close to the president, उन्होंने मोदी साहब ने फोटो, Mr. Navarro जी ने फोटो भी ट्वीट किया, look at this man, Mr. Modi, what is he doing? He is fueling the war. So he's creating a war, he's funding the war. He actually said on NBC, he actually said it's Modi's war. The two anchors sitting over there, they said, you mean Putin's war? He said, no, Modi's war. So Mr. Modi is responsible for the Russia-Ukraine war. And it is Modi who's financing the war. And according to the Americans, it is Modi who will bring about peace in Russia and Ukraine. I am proud to be an Indian today, man. Oh, God. And Mad Money, the gentleman who is the famous anchor of the Mad Money of CNBC, he is having an entire dialogue on Prime Minister Modi. He says how Modi is doing this and how Modi is doing that. I never knew any person and such a star anchor ever talking about anybody from the Asian countries the way he's talking about Modi today, Prime Minister so Modi. So Mr. Modi is according to the Americans, is the most powerful man in the world today. Let's be very, very clear. Oh God, this is amazing. Absolutely amazing. I am surprised that Trump has not blamed him for the wildfires in California and the typhoon that hit Florida just recently, and so on and so forth. Now, all I'm saying is this is ridiculous what's happening at the moment. The other thing also is that as far as India is concerned, in terms of textiles, so we have already approached 40 countries. 40 देशों में बातचीत हो चुकी है. We've already approached 40 countries so that Indian exporters can shift from the United States of America to these other countries. That's it. That's number one. Number two, Trump साहब जो है वो कहते हैं कि साहब आप जो है रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। हाँ जी खरीद रहे हैं, हम तो खरीदेंगे, क्यों ना खरीदें? नंबर एक, आप भी तो रशिया से यूरेनियम खरीद रहे हो। The Americans are buying uranium from Russia. The Americans are buying urea from Russia. The Americans are buying fertilizers from Russia. The Americans are buying rare earth metals from Russia. और व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में, प्रदीप जी, एंकरेज में
which is the capital of Alaska. Yes, yes. वहां पर joint press conference के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि that in this very year alone 2025 trade between the USA and the Russian Federation, which by the way is sanctioned by the Americans, has increased to about 25%. तो आप क्या कर रहे हैं साहब? आप अपने आप पे सैंक्शन लगाइए ना. और कल जब चाइनीज राष्ट्रपति और मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे मिलेंगे तो it's going to be a world news. It's going to be a world news. I know how And Putin is also there by the way. Putin is also expected. Yes, Putin was. How Trump is going to react on that? God you bless have driven Prime Minister Modi to join hands with what the we've three been, axis. I am so happy that Mr. Trump has done what we have wanted him to do, what we have wanted Mr. Modi to do for such a long time. For the last 1 year, we've been screaming over here that our future lies with Russia and China. Russia, India, China is the biggest market in the world. आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें जनाब, आप इसके ऊपर फोकस करें. आप अमेरिका ये जो भी हैं, these are fair weather friends. Let's be very clear. जिस देश से अमेरिका ने दोस्ती करी है, उसका हाल पाकिस्तान वाला हो गया है. सीधी बात. And two worlds in oldest civilizations are coming together. That's right. And I think all the border issues also might just vanish off. If you have a free trade with China, cross-border, interactions, all these things will be things of the past. Even if they're not, Pradeepji, we can live How with them. does We it have lived matter? with them Yes. for such a long We time. can We live live with with them border again. issues. At We some can. point of time, the border issue will be resolved, or it may not be resolved at all. God knows. How does it make a difference? As long as there is no violence over there, we don't want another Galwan kind of incident happening again. That should not happen. That's it. That's all that we are concerned with. Now, the point is this: as far as India is concerned, we are on the up and up and up and up and up. For Mr. Trump to have called, to have said, both Russia and India can take their own dead economies and do whatever. I mean, जिस तरीके से वो बोलता है, वो आदमी है क्या यार? Somebody should find somebody. I think needs to check Mr. Trump's medical condition. I mean, I have never ever seen an American president like this. ऐसे तो याया खान बोला करता था यार. जो when Yahya Khan, the Pakistani dictator, when he used to down 1.5 bottles of whiskey, उसके बाद ऐसे बोला करता था. तो He used to remember his favorite singer at that particular time. that's right, that too. Yes. We'll talk about that too. And Jim Cramer was a man, Mad Money, CNBC, who was being hitting out at Modi the way. I mean, he's never done it before. He's infamous for the subprime crisis time. You couldn't predict anything. And The he CNBC said that himself. I'm investing. Yeah, you invest in the company which next day just fell down like which was not even worth the nine paper. books. Yes, The yes. shares were printed on. That's what happened. And these guys are so shameless, they will continue in this fashion anyway. Right, we've got some very, very reputed guests with us. Let's go straight across to them. Mukesh Gandhi Sahab, how are you? Was fine, sir. Thank you very much for joining us. Namaskar. Dhone Sahab, Dr. Dhone, how are you, sir? Namaskar, sir. Namaskar. And Sushil Vyas Sahab. Ah, look at Sushil Vyas Sahab. Absolutely wonderful. I see him on Facebook in, different kinds of Yes. clothing, different kind of dresses, looking so handsome and wonderful. And Absolutely with lovely. that cap, with that kind of way he was wearing, it was looking very nice on him. Very, very suiting, very, very. Fantastic. Thank you. तो इसके पहले सर के मैं डॉक्टर ढोने के पास जाऊं, I would like to inform Mr. Mukesh Gandhi about something. सर कल, yesterday was August 29, इस विषय के बारे में हमारी और आपकी और डॉक्टर ढोने की बात हुई थी थोड़ी देर पहले. आप शायद उस तक नहीं थे, उस वक्त शायद समीर बागरे साहब थे. But the Supreme Court has told the government of India, you have 3 weeks to come back to us to tell us when are you declaring the Ram Setu a national heritage monument. कब डिक्लेयर कर रहे हैं आप बताइए. कल की बात है सर, ये आपको बता दूं मैं. मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन. बहुत बहुत आपको धन्यवाद. सर वी हैव बीन एट दिस. आपको मालूम है 1.5 साल से हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं Yes, sir. कि राष्ट्रीय धरोहर है ये राम सेतु. इसको आप कब डिक्लेयर कर रहे हैं? Dr. Subramaniam Swamy has revived his petition in the Supreme Court and the Supreme Court has taken a very serious view. They've told the government कि आपने ये तो 5 साल पहले बोला था, अब आकर के आप दोबारा वही चीज बोल रहे हैं. Please don't say that. You tell us what you're going to do. And they've given them 3 weeks time. So congratulations, sir. Congratulations to everybody. Right, Dr. Yes, Dhone. Dr. Dhone, the first quarter GDP growth results are out. You'll be glad to know India is now growing at 7.8%. That
7.8% सर हिंदुस्तान का ग्रोथ है, 7.8%, नॉट बैड, डोंट यू थिंक सर, फॉर ए डेड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था तो मरघट में, मुर्दाघाट में, ऐसा करके ट्रम्प साहब ने बोला, जिसको राहुल गांधी जी ने भी रिपीट किया। मैं आपको थोड़े से फिगर दे देता हूं सर। यूएस इकोनॉमी, ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन, यूएस इकोनॉमी इज ह्यूज, $30 trillion, that has grown at 3.3%, China at 5.4%, France at 0.1%, Germany at 0.4%, Pakistan 1.4%, Russia at 1.4%, Canada at 2.2%, Japan 0%, India at 7.8%. सर इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू कंग्रेचुलेट इंडियंस फॉर देयर हार्ड वर्क एटलीस्ट? धोनी साहब। नहीं सर, ये जो इकोनॉमी, एक तो भारत की लोक संख्या ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पे उत्पादन भी होता है, काम करने वाले भी लोग हैं, लोगों के श्रम का ये नतीजा है कि सरकार की सफलता का नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो आंकड़े आते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है और कुछ मुट्ठी भर अमीर होते जा रहे हैं, और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम हो गई है। लोगों के हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे अभी भी सरकार उनको मदद कर रही है। तो इस पर से ये दिख रहा है कि देश में आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई बहुत खुशहाली का माहौल है और देश में लोगों के पास पैसे आए, ऐसा नहीं है। पैसे आए हैं मुट्ठी भर लोगों के पास, इस देश की आम जनता के पास पैसे नहीं आए हैं। और जनता पे जो है हर जगह पे जो 18% जीएसटी है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है, बाद में कि होटल में खाना खाने को जाते हैं उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है, हर चीज में, कोई सीमेंट खरीदता है, कोई लोहा खरीदता है, हर दूध और दही पे भी है। हाँ, दूध और दही पे भी है। हाँ, तो ये हर जगह पे आने इतना टैक्स हर जगह से ले रहे हैं। और उसमें भी ऐसा है कि व्यापारियों को इसमें कोई तकलीफ नहीं। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, व्यापारी लोग तो आजकल क्या कर रहे हैं, जनता से तो ले रहे हैं टैक्स, जीएसटी का ले रहे हैं, लेकिन आप कोई होटल में जाएंगे और उसने बिल दिया, वही जीएसटी बिल रहता है वो, और उसके बाद में अपन उसको कैश दिए तो वो बिल डिलीट कर देता है, और अगर अपन ने फोन पे से किया है तो बिल रहने देता है। और आजकल तो लोगों ने नई आइडिया निकाली है कि कोई उनके जो स्टाफ के लोग हैं उनका जो है उनका स्कैनर लगा देते हैं, उनके अकाउंट का स्कैनर लगा देते हैं, उसमें पैसे चले जाते हैं, पैसे वसूलते हैं होटल वाले लोगों से, और जो क्या जीएसटी का बिल वसूलते हैं, लेकिन उनके खाते में पैसे दिखा देने बाद में कैंसिल कर देते। ये तो नई लूट शुरू हो गई सर। दोनों साहब, आरएसएस ने आपका जो चिंता था मोदी साहब के प्रति उस चीज को क्लियर कर दिया। आरएसएस ने कहा, मोहन भागवत जी ने कहा, ना मैं रिटायर हो रहा हूं, ना आगे जाके मोदी साहब रिटायर होने वाला, ना मैं कभी कहा कि मोदी साहब को रिटायर करना पड़े। तो क्लियर कट है। और वो तो हम तो बता ही रहे हैं ना। मैंने तो इसके पहले भी बोला कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, मोदी जी जाने वाले नहीं है। आप देख लीजिए मैंने जो क्या बोला था। हाँ। मोदी जी के भरोसे ही तो इनकी सब चल रही है, आरएसएस बीआरएसएस का नहीं है सर। ये जो दिखावा करते हैं कि आरएसएस के वर्कर है, ऐसा है वर्कर, ये 100 साल हो गए आरएसएस को, और इस देश को आजादी मिलके भी कितने 70 साल के ऊपर हो गए, फिर भी कहाँ इनकी सरकार आई थी। आरएसएस तो 100 साल पुरानी है जी। ये तो मोदी जी ने जो उद्योगपतियों को पकड़ा, पैसे जमा किए, मीडिया में इमेज बनाए, सब मीडिया खरीद लिया, और गुजरात मॉडल का सब दिखाया, एक झूठा दिखाया है, एक लोगों के पास एक तैयार किया कि गुजरात मॉडल वही है जो दूसरे देश के राष्ट्रपति आए तो उसको छिपाने के लिए उन्होंने एक दीवार तैयार कर ली है। ये खराब जो चीज है, गरीबी इस देश की, गुजरात की गरीबी दिखाने के लिए नहीं दिखने को ना, इसलिए दीवार तैयार की है। तो ये मॉडल, झूठा मॉडल लोगों को दिखा के लोगों को फंसाया। केजरीवाल ने उनका साथ दिया, सरकार ने सर सुनिए, ये जो सरकार है ये मोदी जी की वजह से आई है, जो उन्होंने झूठा माहौल तैयार किया उसकी वजह से आई, कोई आरएसएस की वजह से नहीं है। एक चीज के ऊपर तो आपको खुश होना चाहिए सर, एक चीज के ऊपर तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहिए मोदी जी को, जो मोदी जी अभी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। 1950 में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर आप स्पीच सुनेंगे लोकसभा में, व्हाट डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू से, भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग।
पंडित नेहरू ने कहा, सर, जिसकी वजह से सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बने, सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बने, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने, ये उसके बाद इसरो बना। उस वक्त इसरो नहीं कहते थे, दे यूज्ड टू कॉल इट समथिंग एल्स। डॉक्टर होमी भाभा को और बढ़ावा दिया गया, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया। ये और साथ में more than anything else, sir, Mukesh Gandhi साहब and Sushil Vyas साहब will also appreciate this. It is Pandit Nehru's insistence कि ONGC बनाया गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बनाया गया, क्योंकि सारी अमेरिकन कंपनीज ने आकर के यहाँ पे बोल दिया था, एंड स्पेशली दोज बिग डच कॉन्ग्लोमरेट्स, के देयर इज नो ऑयल इन इंडिया, हिंदुस्तान में तेल है ही नहीं, व्हाई डोंट यू जस्ट बाय फ्रॉम अस? दैट्स व्हाट दे हैड सेड. Pandit Nehru had said no, and he said we have to be self-sufficient. Dhone साहब, I think you should congratulate Modi जी for saying नहीं सर, ऐसा है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए. बोलिए सर. नहीं, ऐसा पंडित नेहरू जी ने जो बोला था, उनके वही अगर वही चीज वही बोलते हैं, पंडित नेहरू जी ने बोला कि वह आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि देश के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था, देश नया नया बना था, एक पूरा अखंड हिंदुस्तान, तो जैसा ये जो सरकार का सिस्टम जो शुरू हुआ था, नया नया देश आज़ाद हुआ था, सरकार के पास पैसे भी नहीं थे, तो जनता को उन्होंने बताया कि सरकार तो करेगी कोशिश, लेकिन जनता को भी खुद के बलबूते पे ही तैयार रहना पड़ेगा खुद का तरक्की करने के लिए। तो ये उस वक्त का जो पंडित नेहरू का था, और उन्होंने पब्लिक सेक्टर बनाया है, आपने जो नाम गिनाए वो सभी पंडित नेहरू ने खड़े किए, और मोदी जी ने तो बेचने का काम कर रहे हैं। जो प्रॉफिट में नहीं सर, प्रॉफिट में जो कंपनियां हैं उसको भी मोदी जी बेच रहे हैं। तो ये तो पंडित नेहरू में और इनमें बहुत फर्क है। मुकेश गांधी साहब, नहीं सर, मेरी बात रहेगी 2 मिनट। बोलिए। नहीं सर, ऐसा है कि पंडित नेहरू जी आत्मनिर्भर, उस वक्त माहौल ऐसा था ना, मोदी जी जो कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसका मतलब आप सरकार पे डिपेंड मत रहिए, आप आत्मनिर्भर खुद के भरोसे रहिए। सरकार कोई मदद करने वाली नहीं है, सरकार तो मुट्ठी भर उद्योगपतियों को मदद करेंगी, उनका टैक्स माफ करेंगे, 15 लाख करोड़ माफ करेंगे, लेकिन जनता को मिनिमम बैलेंस अगर उनका नहीं है, 500 रुपये 1000 रुपये उनके खाते में नहीं है, तो उनसे टैक्स वसूलेंगे, उनके पेनाल्टी वसूलेंगी। ये सिस्टम मोदी जी ने तैयार किया है। तो मोदी जी का कहना है कि मेरे पे या सरकार पे आप डिपेंड मत रहिए, आप आत्मनिर्भर हो जाइए, खुद के बलबूते पे कुछ जो करना है वो भगवान भरोसे आप कीजिए, खुद के भरोसे कीजिए, मेरे भरोसे मत रहिए। ये पंडित ने अपने मोदी जी का कहना है। राइट, चलो लेट मी गो टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, लेकिन इस बात में दम तो है, सीधी सादी बात है, आज की तारीख में जब आप कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, ऑल द मल्टी बिलियनर्स एंड एवरीबडी एल्स, उनकी कंपनी जो है वो उनका घर चलाती हैं, पर्सनल इनकम टैक्स तो उनका बहुत कम होता है, वो टैक्स देते हैं 4% पे, हम लोग देते हैं, मैं, आप, सुशील व्यास जी, डॉक्टर ढोने, खैर आपके बारे में मुझे मालूम नहीं है सर, मुकेश गांधी साहब माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो यू माइट एक्चुअली बी ए मल्टी बिलियनर, आई डोंट नो। तो हम लोग तो सर 18% से 33% पे देते हैं, आपको लगता नहीं है दिस इज बीइंग स्लाइटली अनफेयर? अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड मुकेश गांधी सर। अभी इन्होंने तो, भाई ने, हमारे दोस्त ने तो वही घसी पीटी कांग्रेस की वही रेकड़ बजा के सुना दी, और आपने जो पंडित नेहरू जी का जो एप्रिसिएशन किया और उनकी जो प्रशंसा की, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। कि इतिहास में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है वो लिखा जाता है, और जो काम बुरा करता है वो भी लिखा जाता है। पर मेरे हिसाब से राजीव जी, अभी आज के वर्तमान काल में मुझे लगता है एक नया इतिहास लिखा जा रहा है जी, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जिस तरह से ट्रंप ने हमारे ऊपर इतनी सारी इम्पोज किया, भारत को मित्र में से दुश्मन जैसी ट्रीटमेंट देना शुरू किया, और उस वक्त हमारे भारत के अंदर एक 2 प्रकार के ग्रुप हो गए आज राहुल गांधी के कारण, एक एग्रेसिव और एक मेरा कहने का, एक एडवेंचर है और एक दूसरा जो है वो मिस एडवेंचर है। अभी मोदी जी जो है वो एडवेंचर है, वो हर चीज में एडवेंचर से नए नए साहस करके हमारे देश को आगे से आगे एक एक योजना बना के लेके जाते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका ने दी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी बात करके, खोटे झूठे नरेशन बना करके वो एकदम गलत काम करते रहे,
और मिस एडवेंचर जो होता है, वो मिस एडवेंचर और एडवेंचर, इसके बीच में आज एक हिंदुस्तान में वॉर चल रही है। और उसमें मोदी जी ने आज जो आपने पहले शुरू में कहा कि 7.68 हमारा जीडीपी ग्रोथ मेंटेन करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा इसलिए होता है, तो चाइना में भी है ना, रशिया में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह पॉपुलेशन अपनी अपनी जगह पे 6.8 नहीं है सर, 8 है, 7.8%। उसके सामने हमारा 7.8 का जीडीपी ग्रोथ रखना ये कोई जोक की बात नहीं है। आज आप देखो कि फॉरेन में भी एक पत्रकार है, अरे एक अर्थशास्त्री है, रिचर्ड वॉल्फ ने अमेरिका के लिए, उन्होंने कहा, एक रशियन चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कहा कि अमेरिका जो कर रहा है भारत के सामने, ऐसा लगता है कि चूहा हाथी के सामने कुछ कर रहा है। इतनी उपमा देकर के ये जन्ना अर्थशास्त्री ने ट्रंप का भी बैंड बजाया, और साथ में राहुल गांधी जैसे जो लोग रॉन्ग नरेशन खड़ा करने का काम करते हैं, उनको भी फायरिंग किया कि व्हेन द country is progressing, country is supporting, and country is developing the new ideas and new relations with the world. और उस टाइम के अंदर आप अमेरिका की, ट्रंप की बातें लेकर के इंडिया में जाते हो, और जाते हैं तो जाते हैं, और उससे आगे जाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जाकर के एक रैली के अंदर कुछ भी करो, ऑपोजिशन करो, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्वर्गस्थ माता को जब आपका एक कार्यकर्ता भद्दी गाली देता है, खराब गाली देता है, तो उसके सामने कोई बयान नहीं करते हैं, हंसते हैं। और आप राहुल गांधी के जितने भी नरेशन सुनो तो आपको लगता है कि ड्रामा करता है, हंसी करता है, एक कैसा ऑपोजिशन लीडर बन गया है। गांधी साहब, आप देखिए, गांधी साहब, रघुराम राजन ने आलोचना इस तरफ से किया, बोले इंडिया और यूएस का एक ही फैक्टर है जो आपस में झगड़ा है, रशियन ऑयल इज द ओनली डिस्प्यूट। रशियन ऑयल का फायदा कुछ उद्योगपति को हो रहा है, कुछ उद्योगपति शायद अंबानी, अडानी और तीसरा इनको हो रहा है, मगर हम लोग जितने नुकसान, ना सुनिए, पूरा सुनिए। रघुराम राजन का कहना है हम इस प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज को मुनाफा छोड़ के देश हित में जितने लार्जर लोगों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो अलग अलग सेक्शन जो 50% उन्होंने इंपोज किया है, क्या एक रशियन ऑयल के वजह से ये 50% टैरिफ लेना वाइज है, या उस रशियन ऑयल को छोड़ देना? तो ये चिंता का विषय है। रघुराम राजन का कहना है इस पर सोचना चाहिए। आपका क्या राय है मुकेश गांधी साहब? देखिए, ये रशियन ऑयल लेकर के इन्होंने पूरी हमारी इकोनॉमी को मेंटेन नहीं किया होता तो आज हमारे यहाँ, आज एक तो पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव इतने बढ़ जाते कि वापिस कांग्रेस वालों को नया वॉर करने के लिए नया नरेशन करने का एक नाटक मिल जाता था, एक स्क्रिप्ट मिल जाती थी, वो एक तो कंट्रोल हो गई। हमारे लोगों को आज कितने सालों से एक स्टेडी रेट के अंदर हमारा पेट्रोल डीजल हमको मिल रहा है, नेचुरल गैस मिल रहा है, सीएनजी भी हमारे रेट मेंटेन किए गए हैं, तो ये सक्सेस तो है। अभी आज क्या रशिया अमेरिका को खुश करने के लिए हम हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करें? वो तो उस टाइम में जब वैक्सीन का इश्यू आया था तब भी वर्ल्ड के कुछ लोग उनके अमेरिका की फेवर में कहते थे कि हमको फाइजर की लेनी चाहिए वैक्सीन, और उस वक्त नरेंद्र मोदी एक मर्द आदमी था कि जिन्होंने पूरा चैलेंज उठाया। गांधी साहब, साइंटिस्टों को टॉपिक से हट रहे। रघुराम राजन का कहना है कि ये रशियन तेल का मुनाफा कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को हो रहा है, पूरे देश इसमें बहुत प्रॉफिट नहीं है, हम रशियन ऑयल उतने ही अलग अलग जगह से ले सकते हैं। रघुराम राजन का कहना है क्या कुछ उद्योगपति का प्रॉफिट्स के लिए हम 50% पूरे देश में इंपोज लेकर रहते हैं, तो इस पे देश को सोचना पड़ेगा, ये उनका कहना है। Why should we allow private corporates to profit at the loss of the entire country? रघुराम राजन को कहना चाहता हूं कि 50% ये जो टैरिफ जो लगी है उसके अंदर से अगर यूएसए अगर जेन्युइन था तो उनको मेडिसिन के ऊपर भी ड्यूटी लगानी थी, वो नहीं लगाई है। उसने अपने मतलब की जितनी जगह ड्यूटी है वो ड्यूटी लगाई है,
और हमारे ये एक्सपोर्ट का डाइवर्जन हमारे जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, अभी इन्होंने पूरे एक्सपोर्ट हाउसों को बुलाया है और पूरी तरह से किस तरह से ये एक्सपोर्ट मैनेजमेंट होगी और हमारे जितने कॉन्सुलेट जनरल ऑल आउट ऑफ द इंडिया है उन सभी को बोला हुआ है कि आप रशियन ऑयल का फायदा क्या किसको हो रहा है, इस पे क्या व्हाइट पेपर निकलना चाहिए? सिस्टमेटिकली उनको आप पूरा हमारी भारत की कौन सी प्रोडक्ट जा सकती है उसका सर्वे रिपोर्ट भेजे और आप देखना 2 महीने में ये ट्रम्प हमारे राजीव जी के स्टेटमेंट के मुताबिक रघुराम राजन का स्ट्रेट पॉइंट था रशियन ऑयल का री एक्सपोर्ट में हमारे उद्योगपतियों को सिर्फ फायदा हो रहा है, देश को कम फायदा हो रहा है। उसके एवज में हमने 50% टैक्स ले लिया। रशिया का तेल लेना एक ही फैक्टर है जो अमेरिका ने 50% इंपोज किया है। क्या ये कुछ उद्योगपति को प्रॉफिट हो रहा है? वो अंबानी रिफाइनरी की बात करते हैं, उनको बोलो खुला बोले। और अंबानी की रिफाइनरी का जो भी टैक्सेशन है वो इंडिया से होके जाता है। और जितनी भी दूसरी हमारी रुइया वगैरह की भी जो कंपनियां हैं, जितनी भी ऑयल की, वो सारी कंपनियों का मुनाफा होता है, पर उसके सामने वो मुनाफा यहाँ टैक्सेशन में आता है। और भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा चाहिए वो चैनल से, वो प्रॉफिट से हमको मिलता है। नहीं तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा डिफेंस का काम हमारा देश कैसे कर सकता था? And the other thing over 50% टैरिफ से घबराने की कोई जरूरत नहीं। And the other thing over here is very, very simple. This refined oil, we are refining it. The Ambanis are doing it. SR is doing it along with the Russian company, by the way, and Adani is also doing it a little bit, and Indian Oil Corporation. These refined products are being sold back to Europe. Europe खरीद रहा है, by the way, ये भी बता दूं आपको। इसको खरीद कौन रहा है? यूरोप खरीद रहा है। तो जैसे जयशंकर साहब ने बोला कॉन्फ्रेंस में कि भैया अगर आपको इंडियन ऑयल यानी इंडियन पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए तो मत खरीदो। हु इज फोर्सिंग यू टू बाय? डोंट बाय। आपको लगता ना कि हम मुनाफा कमा रहे, खरीदना बंद कर दो। ऐसी क्या बात है? वी विल सेल एल्सवेयर। वेयर इज द प्रॉब्लम? व्यास जी अब आप बताएं सर, जहां तक के it is only now, by the way, that the Americans are realizing. Raghuram Rajan साहब great आदमी है sir. I think it was a mistake to make him RBI governor anyway, but he was. मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, और वो धनखड़ के भाई थे सर। ऐसा नहीं, बट मेरा कहना, अगर कोई अच्छा पॉइंट हाईलाइट कर रहा है तो उसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए जी। तो सर व्यास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अब जाकर के अमेरिकी पब्लिक को मालूम पड़ रहा है कि ये 50% टैरिफ जो है वो तो अमेरिकी पब्लिक को देने हैं, हमें थोड़ी देने हैं। हमारा तो मैक्सिमम क्या होगा, इंपोर्टर जो हैं वो बोल देंगे हमारे एक्सपोर्टर्स को कि भैया नहीं चाहिए, बहुत महंगा हो गया है, पीपल वोंट बाय, और दे विल बाय। अमेरिकन इंपोर्टर्स will have to pay the duty, that is 50%, or distributors will have to pay the duty, or retailers will have to pay the duty, or consumers will have to pay the duty. जहां तक हम लोगों का सवाल है, वी आर वेरी क्लियर कि भाई ये हमारा ये कॉस्ट है, आपको चाहिए ले लीजिए, नहीं चाहिए वील सेल समवेयर एल्स, दैट्स इट। हाँ, हो सकता है कि कुछ देर के लिए हम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़े टिल सच टाइम एज वी फाइंड अ न्यू मार्केट, बट 50% टैरिफ्स, आई थिंक द अमेरिकन पब्लिक थॉट कि ये 50% जो टैरिफ लगाए हैं इंडिया पर, ब्राजील पर, वेनेजुएला पर, पैराग्वे पर और एक दो और देशों पर, ये वो देश देंगे। अरे भैया वो तुम्हारे ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। अब आप बोले व्यास जी, अब आप बताइए। नहीं, बजाज साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप जो मेरे से पूछ रहे हैं उसका उत्तर तो आपने ही समाप्त कर दिया कि अमेरिकन जनता जो है अपने नेतृत्व के जो विचारधारा है उसके सख्त खिलाफ है। और जहां तक मेरी जानकारी है, कल वहां के न्यायालय ने भी कुछ इसी तरह का आदेश पास किया। फेडरल कोर्ट ऑफ अपील से उन्होंने कहा कि तो मिस्टर ट्रम्प, ऑल योर मोस्ट ऑफ योर टैरिफ्स आर इलीगल। जी बोलिए। वो अपने अंतर्द्वंद से वही खेल रहे हैं। उनकी जनता आप देखेंगे बहुत निकट भविष्य में अपने नेतृत्व के खिलाफ सड़कों पे आएंगी। जैसे कि आपने कहा कि ये जो टैरिफ वगैरह जो देना है वहां के कंज्यूमर को देना है, वहां के लोगों को देना है। ठीक है, हमारे पास सामान है, हम इस मार्केट में नहीं बिकेगा, उस मार्केट में बिकेगा, थोड़ा देर लगेगा। जो आपने सही कहा उस चीज को, एंड एज यू राइटली सेड कि इंडिया की जो विदेश नीति और जो कूटनीति है,
जिसका जिक्र मुकेश भाई भी कर रहे थे, ये आज की नहीं है, बरसों की है। जिन हमारे महान नेता, देखिए विचारधारा का फर्क हो सकता है, नेहरू जी का जिक्र आपने कहा, उन्होंने जिस दूरदृष्टि के साथ कूटनीति को भी बनाया था और तमाम विश्व के देशों के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध थे उनको उन्होंने बनाया था, वो आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में उससे ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत होते जा रहे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है ट्रंप के इस टैरिफ वाले प्लान का, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में भारत एक तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे तो है ही, बहुत जल्दी तीसरे नंबर पे विश्व की आर्थिक ताकत के रूप में उभरने जा रही है। और इसको देखिए क्या होता है, जो उगता सूरज जब होता है ना, उसकी तरफ हर आदमी उछालने की कुछ न कुछ कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि मैं उनकी तरफ थूक उछालूंगा तो मेरे ही मुंह पे गिरेगा। तो ट्रंप का भी वही हाल होने वाला है। आप निश्चित रहिए कि बहुत निकट भविष्य में मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, आज एक्स पर जो विच वॉज फॉर्मली ट्विटर, जो एक्स है ना एलॉन मस्क पर, उसके ऊपर मालूम है क्या ट्रेंड कर रहा है अमेरिका में? अमेरिका में ट्रेंड कर रहा है, यहां पर नहीं। ट्रंप इज डेड, दैट इज व्हाट इज ट्रेंडिंग इन अमेरिका। ट्रंप इज डेड, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग नाउ। I don't know why they are saying it. मैं वही मैंने पढ़ा उसको बजाज जी, लेकिन मैं किसी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में इस तरह के शब्द नहीं उच्चारित करना चाहता था। लेकिन निश्चित रूप से विचारधारा का जहां तक सवाल है, डेफिनेटली विचारधाराओं के हिसाब से वो डेड है। राजीव एक मिनट, हम बोल नहीं सकते हैं, पर क्रिस्टीना केर ने जो वर्ड यूज किया ट्रंप के लिए वो तो कितना जबरदस्त खराब है। क्रिस्टीन फेयर। और सर क्रिस्टीन फेयर की बात ना ही करें तो अच्छा है। उसने हम लोगों के लिए क्या शब्दावली का प्रयोग किया है, अब उस पे ना जाएं, उसका दिमाग चल गया है, छोड़िए सर, वो जाने दीजिए। Don't go by that. व्यास जी, आरएसएस ने कहा स्वदेशी अपनाओ, आरएसएस ने कहा स्वदेशी इज द ओनली वे फॉरवर्ड, हाउ यू गोइंग टू टेक ऑन ट्रंप और ट्रंप टैरिफ्स को आप टक्कर लेने के लिए स्वदेशी। मोदी साहब ने कहा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी इंडिजिनियस प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया का प्रमोट करो। मगर इंडिया अलायंस जो हाईलाइट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जो हाईलाइट कर रहे हैं, हम फूल भी, गणेश जी का फूल जो खरीद रहे हैं वो प्लास्टिक के फूल, चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। हमने ओरिजिनल फूल भी खरीदना बंद कर दिया है, बिकॉज यहाँ के लोगों को जो फूल के ये एसोसिएशन है प्रोटेस्ट किया, बोले आप चाइनीज फूल कर रहे हो तो एक ही बार लगना पड़ता है पूरे 10 दिन। तो ये एक है, और आने वाले हर प्रोग्राम में चाइनीज प्रोडक्ट, एक पूरे देश में फैला हुआ चाइनीज प्रोडक्ट। तो किस प्रकार, एक प्रकार बोलना, एक प्रकार इंडिजिनियस, एक प्रकार स्वदेशी, आरएसएस, बीजेपी, कैसे देखते हो? डू यू थिंक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है कथनी में, बोलने में और करने में? हाउ डू यू सी दैट व्यास जी? नाम्बियार जी, देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम है आलोचना करना। आप क्या समझते हैं कि आरएसएस ने जो कहा, या मोदी जी ने जो कहा, या हमारे पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में जो कहेंगे, उसको कांग्रेस, आरजेडी और तमाम विपक्षी दल उसको वाहवाही करेंगे? हमें आशा है उसकी आलोचना करेंगे, तो ठीक है, वो उनको करने दीजिए। हम स्वदेशी का जो नारा है, क्या आज पहली बार मोदी जी ने दिया है या आरएसएस ने दिया है? 1942 में क्या आंदोलन हुआ था, मुंबई की सड़कों पे क्या जलाया गया था, तो क्या उसका भी आलोचना करेंगे? वर्तमान में जो नेता जिनका नाम आप लिए, जिन दलों का नाम आप लिए, क्या उसको भी वो ऐतिहासिक सत्य जो है स्वदेशी आंदोलन, उसका भी वो भर्त्सना या आलोचना करेंगे क्या? तो मोदी जी ने, आरएसएस ने वही चीज को आगे बढ़ाया जो हमारे पूर्वजों ने कह के गए कि स्वदेशी को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे अपने प्रोडक्शन को, हम कंज्यूमरिज्म उनकी मजबूती से नहीं आगे बढ़ाएंगे, तब तक वो उसका बायर अगर हमारा यहाँ पे नहीं होगा, उसका कंज्यूमर हमारे यहाँ नहीं होगा, तो उस अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करेंगे? तो ये क्या गलत कहा किसी ने? अब ठीक है, आलोचना करने के लिए कहें तो पहले मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि 1940-42 में जो स्वदेशी आंदोलन, उसके पहले 1920 तो उसका भी विरोध कर दें। इसका मतलब डिफेक्टो आप वही उसका भी विरोध कर रहे हो। उन नेताओं को जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, उसका भी आप आलोचना कर रहे हो। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। मुझे एक मिनट दीजिए खाली सर, मैं आता हूं आपके पास। ये स्वदेशी की बात जो करते हैं सर, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्कॉन मंदिर की जो आवक है वो आवक भी परदेश में जाती है। तो जैसे हम लोग को दूसरे अमेरिकन प्रोडक्ट को, फॉरेन के प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है,
तो इस्कॉन मंदिर का पैसा भी आवक जो है इट इज इक्विवेलेंट, एक बेंगलोर का मंदिर है इस्कॉन का, उसकी इनकम ब्रिटानिया कंपनी के जितनी है। But they must be doing it legally, no, sir. Whatever is legal. बाइकआउट करना पड़ेगा। लेकिन मुकेश गांधी साहब, whatever is legal, मुकेश गांधी साहब, बीजेपी की नीति भी क्लियर होनी चाहिए इसमें। I agree with you, but the fact is whatever is legal. लेकिन डॉक्टर ढोने, the fact remains, बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल लाल, ये हमारे 3 हुआ करते थे स्तंभ कांग्रेस के। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट को पॉपुलराइज किया। उस वक्त मैं मानता हूं, जैसे ही हम as soon as we became independent, उसके बाद there was a totally different kind of viewpoint that was espoused by the भारतीय जनसंघ at that time. वो चाहते थे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, लोगों को थोड़ा और ज्यादा पैसा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट पंडित नेहरू स्टक टू हिज गन्स। माय पॉइंट इज, मेरा यही पॉइंट था सर आपको, कि आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि सर फाइनली मोदी जी इज अग्रीइंग विद द कांग्रेस की जो मूल फिलॉसफी है जिससे आप लोग हट गए हैं। आरएसएस ने उसको पकड़ के रखा है, स्वदेशी को, स्वदेशी जागरण मंच उनका है, तो आप लोगों को बल्कि वो वेलकम करना चाहिए सर। आप उसके खिलाफ क्यों हैं डॉक्टर ढूने? ये सिर्फ बातें करते हैं सर, बातें करते एक्चुअल हैं। में इनके स्लोगन बहुत बड़े बड़े रहते हैं। इनके जैसा क्या बोलते हैं उसको, इवेंट मैनेजमेंट जबरदस्त है, इनके स्लोगन बड़े रहते हैं, इस तरह से रहते हैं कि बस पूरा देश को ऐसे एकदम प्रभावित कर देते, इस तरह से रहते हैं। इनके पास भाषण देने वाले लोग भी बहुत बढ़िया है। तो ये सब बोलने की बातें हैं। आप थोड़ा इंपोर्ट कर लीजिए जी, बोलिए। नहीं सर, ऐसा है कि ये सिर्फ बोलते हैं। हाँ वो ठीक है सर, ये तो बात बराबर है, कुछ चीजें है सीखने की, लेकिन जो है झूठ बोलने की जो है वो तो नहीं सीख सकते। लेकिन सर आप ये बताएं, आपने जो कहा सर एक सेकंड सर, सॉरी। आज की तारीख में जिस प्रकार मैं देख रहा हूं, जो राहुल गांधी जी के लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए भीड़ आ रही है बिहार में, जो उनकी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, जबरदस्त है सर, फैंटास्टिक। तो मतलब ये तो आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस को समर्थन नहीं मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन तो मिल रहा है सर, बहुत जबरदस्त मिल रहा है बिहार में। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप वोटों में तब्दील कर पाएंगे, आप चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी गुड। हो सकता है कि सिर्फ आरजेडी की ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे, क्योंकि आरजेडी का वैसे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और पिछले 3 चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की जो है दैट हैज बीन द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार। बाकी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के कॉम्बिनेशन ने, जैसे कहा जाता है, सबसे बड़ी पार्टी जो भी हो, नीतीश कुमार जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। तो इस बार सर आप क्या लग रहा है आपको अशोक, डॉक्टर ढूने साहब, कि ये भीड़ देखिए ना, भीड़ देखिए, ये देखिए पटना की भीड़ है ये, अरे बाबा क्या जबरदस्त है सर। अब आप बताएं डॉक्टर ढूने। सर ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, इन्होंने इतना माहौल किया था और ऐसा लग रहा था कि भाई मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, मोदी जी एकदम अजय आदमी है, अपराजित है, इनको कोई हरा नहीं सकता। तो इनका 272 चाहिए सर, इसके लिए मेजॉरिटी के लिए इन्होंने बोले 400 का नारा दिया, अब की बार 400 पार। तो ऐसा लग रहा था कि 400 पार हो जाएंगी क्या, ऐसा एक माहौल बना दिया था। लेकिन जनता ने क्या किया, इनको मेजॉरिटी भी नहीं दिए, 272 भी नहीं दिए, 240 पे अटक गए। आज भी अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये बाजू में हट गए तो इनकी सरकार गिर जाती, बैसाखी पे इनकी सरकार है जी। तो लोकसभा के बाद जो शुरू हुआ, तो ये अभी इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है। और नीतीश कुमार का हम देख रहे हैं वो क्या करते हैं, वो तो उनके खुद के मिनिस्टर को भी नहीं पहचानते कि ये कौन है, वो पूरे भूल गए। अभी माहौल तो उनके खिलाफ में चलेगा। और ये जो अभी हुआ है कि वोट चोरी का मामला, तो वोट चोरी के मामले में अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, मैं उनसे भी बात किया है, हमें मालूम है कौन कौन से वोटर रहते हैं। तो वो जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी जब हमारे डिस्कशन होता है, वो भी नाराज हो गए कि अरे क्या चल रहा है, ये तो हमारा जो अधिकार है, तो ये अधिकार छीन के ये गलत वोटों का ये जो शुरू है, तो ये वो भी नाराज हो गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश हो सकते हैं कि भाई ऐसा वोट चोरी से इन्होंने सरकार लाई है, लेकिन आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के विचारों की भी होंगी या भारतीय जनता पार्टी को वोट देती होंगी, लेकिन वो भी नाराज है। ये तो गलत बात है। दोने साहब, मुंबई साउथ को मनोज जरांगे पाटिल ने 2 दिन से पूरा जाम करके रखा। साउथ मुंबई जाओ, साउथ मुंबई टोटल ब्लॉक है।
दो साल से हम लोग देख रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल एक ही व्यक्ति को लगातार गाली दे रहे हैं, वो है सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा किया, देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा किया। हमने देखा ना शिंदे जी को बोल रहे हैं, ना अजित पवार जी को बोल रहे हैं ना। क्या ये क्या है? आपने एक मोटिवेटेड कैंपेन चलाया है मनोज जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ। क्या फडणवीस जी को गाली देके आपका हक हासिल हो जाएगा? जो रिजर्वेशन कुणबी होना है, कुणबी मराठा, कुणबी सब मराठाओं को कुणबी डिक्लेयर करने का। सर बोलिए। ऐसा है कि मराठा जो है, कोई महाराष्ट्र में मराठा नाम की कोई कास्ट नहीं है। ये गुजरात में रहने वाला गुजराती रहता है, पंजाब में रहने वाला पंजाबी रहता है, राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी रहता है, वैसे महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा। अगर गांधी साहब महाराष्ट्र में है तो गांधी साहब भी मराठा है, व्यास साहब भी मराठा है। नहीं ठीक है, नहीं सुनिए ऐसे ही है। मराठा कोई कास्ट नहीं है। हमने सुनिए, मराठा समाज का जो संगठन है मराठा सेवा संघ, उन्होंने लिख के दिया है गवर्नमेंट को कि मराठा नाम की कोई कास्ट नहीं है। कास्ट जो है अलग अलग है। किसके जो माली रह सकता है, तेली रह सकता है, ये कास्ट है। मराठा नाम की कोई कास्ट नहीं है। भंडारी, ठाकर, हाँ, ये कास्ट रहती है, लेकिन मराठा नाम की कोई कास्ट नहीं है। 96 मराठा नाम की कोई कास्ट नहीं है। सब मराठा है तो फिर ये सब हर कोई मराठा, ये सब मराठा हर कोई नहीं। सुनिए, मराठा है तो वही जरांगे साहब क्या कह रहे हैं, मनोज जरांगे वही कह रहे हैं कि हम कुणबी है जी। देखिए, अंग्रेजों के गैजेट में लिखा था कि भोसले ऑफ सातारा एंड शिंदे ऑफ ग्वालियर। ये जो माधवराज सिंधिया है ना, जिनको सिंधिया बोलते हैं, वो शिंदे है, शिंदे ग्वालियर के शिंदे। तो ये शिंदे ऑफ ग्वालियर एंड भोसले ऑफ सातारा वे आर कुणबी। यस, ओ ये कुणबी है। और जो उस वक्त शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक करने से मना किया था, क्योंकि आप बोले कुणबी समाज है, शूद्र में आते हैं। नारायण राणे बोले कि हम कुणबी नहीं है। नारायण राणे साहब, दो मिनट दोनों साहब, नारायण राणे साहब ने क्लियर करा, हम श्यानव कोली है, हम कुणबी नहीं है, कुणबी नहीं है, तो हम कुणबी। तो ये क्या तकलीफ है? आप कह रहे कि ऐसा नहीं है। राणे साहब खुद जो कमिटी में थे, वो बोलते कि हम श्यानव कोली है, आई एम नॉट कुणबी। तो कैसे आप सब मराठाओं को कुणबी बोलोगे? देखिए भैया, जो शान्यू कुड़ी की लिस्ट है, देखिए शान्यू कुड़ी मराठा की जो लिस्ट है, उसमें 27 नंबर पे मेरा सरनेम है ढोने जी है, करेक्ट है। उसमें मेरे ससुराल जो है कोकाटे, उनका भी सरनेम, उनका भी नाम है शान्यू कुड़ी में जी। शान्यू कुड़ी में है। अभी एक बार मानिकराव ठाकरे साहब षणमुखानंद सभागृह के सामने हम खड़े थे, किताबें थी, तो उनको मैंने दिखाई, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। मैंने बोला देखिए शान्यू कुड़ी मराठा की लिस्ट है भाऊ, और ये मेरा नाम है, उसमें फ्रंट पेज पे ढोने नाम है। तो उन्होंने बोले कि हम ठाकरे कहाँ हैं? तो हमने उनको बोला कि आप हमारे अंडर में हैं, आप हम जो 96 सरने वाले हैं, आप हमारे अंडर में आते हैं। तो ऐसा उनको बोला। तो शान्यू कुड़ी कुछ नहीं रहता, ये शान्यू कुड़ी नहीं रहता। पाटिल जो है, पाटिल ब्राह्मणों में है, पाटिल दलितों में है, पाटिल धनगरों में है, पाटिल सब समाज। अच्छा, देशमुख मुसलमानों में है, देशमुख ब्राह्मणों में है। तो देशमुख पाटिल ये पदवियां है। मराठा यानी महाराष्ट्र में रहने वाला है। और समाज जो जात है, वो जो खुद को मराठा बोलते हैं, उनकी जात कुणबी है। शिवाजी महाराज की जात कुणबी थी, शाहू महाराज की जात कुणबी थी, पंजाबराव देशमुख इनकी भी जात कुणबी थी, और ये कुणबी है, इसीलिए ये शूद्र वर्ण में आते हैं। और दलित जो चमार महार, ये लोग जो है ढोर और मेहतर, ये लोग अतिशूद्र में आते हैं। और कुणबी, तेली, माली ये शूद्र में आते हैं। इसलिए महात्मा फुले कहते हैं कि शूद्रातिशूद्र, शूद्र और अतिशूद्र। तो शिवाजी महाराज बोले कुणबी है आप, तो आप राजा नहीं बन सकते, आप शूद्र जाति के हैं। तो जब शिवाजी महाराज कुणबी थे, शाहू महाराज कुणबी थे, पंजाबराव देशमुख कुणबी थे, तो मराठा कौन हो सकता है यहाँ पे? अभी नारायण राणे साहब जो बोल रहे हैं ना, वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। और अभी शिवाजी महाराज के जो वंशज है, वो भी जो बात कर रहे हैं ना, वो बीजेपी भी बात कर रहे हैं। एक तो है शिवेंद्र राजे मिनिस्टर है, और दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उदयनराजे भोसले। ये तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। बट सॉल्व कैसे होगा? लड़के को, इनका लड़का इतना वाहियात है, नितेश राणे, उसको मंत्री बनाया, उसने मंत्री पद की शपथ ली है कि सबको मैं साथ में लेके चलूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। रोज टीवी पे आके बोलता है ऐसा मुसलमान, ऐसा ये वैसा है। दोनों साहब ये सॉल्व कैसे होगा? उसको मिनिस्टर बनाया, दोनों साहब आपको नॉलेज है, ये सॉल्व होगा कैसे?
मनोज जरंगे पाटिल बोल रहे हैं हमको ओबीसी से ही चाहिए, ओबीसी से ही लूंगा, और फडणवीस साहब बोल रहे हैं ओबीसी से नहीं दूंगा, नो ओबीसी, तो कैसे सॉल्व होगा? नहीं, वो जरांगे साहब ने जो बोला है कि ओबीसी से दो, उनका एक ही कहना है हमको कुणबी के सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। देखिए, मराठा हमारे विदर्भ की कोई लड़की है, हम शादी करते हैं मराठवाड़ा में जब जाती विदर्भ की लड़की, हमारी रिश्तेदार है वहां पे, उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिलता नहीं, हमको मिलता है। हमारी लड़की जाती है वहां पे ओबीसी बन जाती है, क्योंकि कास्ट तो बाप की लगती है, हस्बैंड की लगती नहीं, तो पिताजी की कास्ट लगती है, वो कुणबी में आती है, और वही हमारा दामाद बनता है मराठवाड़ा का, जो खुद को मराठा बोलते हैं, वो हमारा दामाद है, हमारा रिश्तेदार भी है, और कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। तो आप बोल दो कि आपका इंटरकास्ट मैरिज हो गया, मराठवाड़ा का जो मराठा है और विदर्भ की लड़की है, तो वो आप बोल दीजिए कि ये इंटरकास्ट मैरिज है। इंटरकास्ट नहीं है वो, तो मराठा सब लेकिन जो सर, मराठा कहते हैं उनकी धोनी जात साहब, कुणबी है। मनोज जरांगे जी का कहना सीधा है कि हमको कुणबी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगा? ओबीसी सर, में सर, जाने सर, की सर, बात सर। ही नहीं है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं ये, उसके बाद मैं चाहूंगा गांधी साहब इस पे बात करें और व्यास साहब अपना लीगल ब्रेन इसमें इस्तेमाल करें। सर ओबीसी में आने के लिए मराठा जो है, 96 जात जो है मराठा की, वो सोशली बैकवर्ड क्लास में आना चाहिए, सोशली बैकवर्ड। हाँ, ये बराबर। तो मराठा सोशली बैकवर्ड कैसे हो गए सर? है, आप मुझे सर। बताओ। नहीं, How? बताता हूँ मैं, बोलिए। बताता हूँ सर इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, आर्थिक व्यवस्था से नहीं, सोशली बैकवर्ड। आर्थिक व्यवस्था से बैकवर्ड होना ईडब्ल्यूएस में तो उनको रिजर्वेशन मिल चुका है, सोशली बैकवर्ड कैसे हो गए? सारे सरपंच मराठा, एमएलए मराठा, मंत्री मराठा, जितने ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री हुए हैं महाराष्ट्र में सारे मराठा, तो सोशली बैकवर्ड कैसे हो गए? सामाजिक तौर पर पिछड़े कैसे हो गए, ये बताइए सर। आर्थिक व्यवस्था नहीं, बोलिए बाप। देखिए, आर्थिक दृष्टि से तो देखिए, नहीं आर्थिक ठीक है, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग ने कहा है, देखिए आरक्षण का जो अधिकार ये रहता, आधार रहता आरक्षण देने का, किसी भी समाज को जो रिजर्वेशन देते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है उस हिसाब से देते हैं। नो सर, आर्थिक नो सर, नहीं, नो सर, नो ऐसे है सर, ओनली सोशल बैकवर्डनेस सर। नहीं, तो फिर तो ब्राह्मणों को सबसे पहले मिलना चाहिए ठीक है, सोशल पे सर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन अभी नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। हाँ, वो उच्च वर्णीय लोग के लिए ईडब्ल्यूएस जो है सर, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पहले था ही नहीं। वो सब उच्च वर्णीय लोग जो उनको हमेशा वोट करते थे, जब इनका डिपॉजिट नहीं बचता था तब भी वो वोट करते थे, वो लोगों के लिए उन्होंने लाया है। तो सर मंडल कमीशन रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, हाँ। उसमें भी बहुत क्लियरली लिखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं, आर्थिक व्यवस्था जिनकी खराब हो गई है वो रिजर्वेशन यानी आरक्षण के लिए क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, ठीक है। जो सामाजिक तौर पर जिनका शोषण हुआ है, जैसे लोहार हो गए, जैसे दांगड़ हो गए, जैसे बाकी सारी जो जाते हैं जिनको गांव के परिसर के बाहर रखा जाता था, जिनका शोषण होता था, जिनका बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होता था, जिनके साथ आप बैठ करके खाना नहीं खाते थे, उनको अलाउड है सर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज अ सेपरेट इशू, वो तो दे चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सोशल पे आता हूँ ना, सोशल मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप आता हूँ सोशल पे आता हूँ। बोलिए बोलिए। देखिए, सोशल आप बोल रहे हैं कि सोशली आप कैसे बैकवर्ड है जी, तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को आप मराठा मानते हैं ना, मानते कि नहीं मानते मराठा? हाँ बिल्कुल मानते। तो शिवाजी महाराज भी सोशली बैकवर्ड ही थे, इसलिए उनका स्वराज्याभिषेक नहीं किया गया। नहीं किया गया। करेक्ट है। वो तो व्यास जी जैसे लोग थे, गागा भट्ट जो है, ये व्यास साहब के लाइन में आते हैं, तो उन्होंने उनका स्वराज्याभिषेक कर दिया था। दुरुस्त बात। या महाराष्ट्र का कोई तैयार नहीं था तो सर तो और शाहू महाराज जो थे, शाहू महाराज के लिए उस वक्त उनका जो पुजारी था, जो उनसे तनख्वाह लेता था, उनका कर्मचारी था, उनका नौकर था, वो पुजारी ने वेदोक्त मंत्र नहीं कहे, तो जो भागवत नाम के उनके दोस्त थे शाहू महाराज के, उन्होंने बताया कि महाराज ये तो अलग ही मंत्र पढ़ रहा है। तो बोले कौन से पढ़ रहा है? तो बोले एक पुराणोक्त मंत्र है। तो शाहू महाराज ने बोले किसके लिए रहते, वेदोक्त मंत्र किसके लिए रहते? तो बोले वेदोक्त मंत्र रहते क्षत्रियों के लिए और पुराणोक्त मंत्र रहते शूद्रों के लिए, जो क्षत्रिय नहीं, जो ब्राह्मण नहीं, उसके लिए पुराणोक्त मंत्र। तो बोले आप ब्राह्मण भी नहीं, आप क्षत्रिय भी नहीं है,
तो इसीलिए आपके लिए वेदोक्त मंत्र नहीं कह सकते शाहू महाराज की। अच्छा, वही शाहू महाराज के जो वंशज अभी है संभाजी राजे, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा में थे, उनकी पत्नी गई थी नासिक में, उनके लिए आज के दौर में 6 महीने पहले पुराणोक्त मंत्र कहे गए। तो मराठा समाज आज भी सोशली बैकवर्ड है। और ये जो छूट है, छुआछूत की छूट जो दी गई ना, तो ये इसलिए दी गई थी कि भाई उनके हाथ का खाना खाना है, क्योंकि ब्राह्मण समाज तो कोई खेती करने वाला नहीं था जी, अनाज तैयार करने वाला तो नहीं था, तो उतनी छूट उन्होंने दे दी थी कि भाई आपके, हाँ, आप जो पकाए खाना तैयार करेंगे, धान पे उगाएंगे, वो खाने के लिए तो चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज या उच्च वर्णीय जो भी है वो खुद तो तैयार नहीं कर सकते, इतनी मेहनत तो करने की उनकी तैयारी नहीं है। जी, दुरुस्त बात। इसीलिए उन्होंने उतनी छूट दी थी खुद के स्वार्थ के लिए कि आपके साथ हम उतना छुआछूत तो आपके कहने का मतलब हुआ कि हाँ। मराठा समाज जो है महाराष्ट्र का, सुनने वाली बात है व्यास जी और मुकेश गांधी साहब, मराठा समाज जो है वो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग है शूद्र। सर, शोषित महाराष्ट्र के ऊपर में। बात करता हूं मैं, आप ये चला लीजिए। महाराष्ट्र का मराठा समाज शिवाजी महाराज से लेके आज के तारीख तक मनुस्मृति के हिसाब से और सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र है, शूद्र। इसके लिए क्या मैं बात डिबेट है। करने को गांधी तैयार हूं। गांधी साहब, अब आप बोले। गांधी हाँ, साहब, सुनिए, अजित पवार जी सुनिए, कुछ नहीं सुनिए, बोल रहे। मराठा अजित समाज, पवार जी, माली समाज, तेली समाज, ये सब शूद्र समाज है। क्या बात है सर। और महार, मातंग, चमार और ये मेहतर, ये अति शूद्र है। दुरुस्त बात। we will come to ये हकीकत थोड़ा है सा साहब। अब मुकेश गांधी साहब को पूछते हैं। अजित पवार जी, एकनाथ शिंदे जी ज्यादा बहस नहीं कर रहे इसमें, पूरे टारगेट फडणवीस साहब पे। संजय राउत जिस प्रकार से कह रहे हैं वो चीन के दीवार, चाइना के दीवार के तरह मौन है अजित पवार जी। क्या अजित पवार जी का समर्थन है मनोज जरांगे पाटिल जी का आंदोलन के लिए? किस प्रकार से शरद पवार जी ने कहा संविधान को बदलो, अगर तमिलनाडु में 72% रिजर्वेशन हो सकता है तो यहां भी हो सकता है, शरद पवार साहब का कहना है। यहां पर भी एनफोर्स करो, संविधान में चेंज लाओ। मुकेश गांधी साहब, हमारे कांग्रेस के दोस्त है ना, मुझे लगता है राहुल गांधी के पट्ट शिष्य है, पट्ट शिष्य। इस तरह से राहुल गांधी नए नए नरेशन खड़े करके अपनी बात खड़ी करते हैं। वैसे हमारे दोस्त ने बहुत अच्छी तरह से नरेशन खड़े किए, आई अप्रिशिएट, पर सैटायरी नॉट विलिंगली। तो एक बात दूसरी है कि अजित पवार जी का जो स्टैंड है वो देवेंद्र फडणवीस का ही स्टैंड है। अजित पवार का कोई नया स्टैंड नहीं है, क्योंकि नहीं रह सकता। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी ओर से 10% इनको जो कोटा में हो सकता था वो रिजर्वेशन दिया हुआ है। और अभी जो जरांगे पाटिल मांग रहा है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठ नहीं सकता है। इसलिए जब भी लास्ट टाइम देवेंद्र फडणवीस जरांगे पाटिल को खुश करने के लिए स्वयं गए थे कोर्ट में, उन्होंने अपने अपील किया, रॉय थी, सब किया था, फिर भी वो रिजेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जरांगे पाटिल ही क्या महाराष्ट्र है? वही क्या शासन करता है? वही क्या राज्य करता है? क्यों ये मुंबई के, महाराष्ट्र के राजकारण को वो इतना प्रदूषित कर रहे हैं? यही मुझे दोष है। शरद पवार साहब, ओबीसी शरद पवार का साहब, आज ऑल ओवर इंडिया में वर्ग ज्यादा है। शरद पवार साहब से इज पॉसिबल, ये हो सकता है, शरद पवार साहब से हो सकता है बोलते हैं। तो शरद आप पवार संविधान को अपने- चेंज करो। आप- संविधान तमिलनाडु में 72% है, गांधी साहब, शरद पवार साहब का कहना है। यहाँ पवार साहब 15-20 साल तक सरकार में रहे और मराठा के बड़े नेता है, क्यों उन्होंने नहीं किया? इनको देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है, इनका जहरीला द्वेष ये शरद पवार जी के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। और जब से देवेंद्र फडणवीस 1 by 1 स्टेप सक्सेस हो रहे हैं ना, तब से शरद पवार जी की नींद हराम हो गई है। अरे मुकेश गांधी साहब, एक सेकंड, इसके पहले कि मैं व्यास साहब के पास जाऊं, डॉक्टर ढूने आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। नहीं सर, ऐसा है, ये जो अभी व्यास, ये मुकेश गांधी जी ने जो बोला कि शरद पवार साहब ने ये क्यों नहीं किया। शरद पवार 95 तक थे सीएम महाराष्ट्र के, उसके बाद अभी 30 साल हो गए शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं। पर इनकी मिनिस्ट्री तो थी ना बाद में एनसीपी की, क्या बात करते हो 15 साल तक? देखिए, लेकिन देखिए, जब देखिए बच्चा उनके हाथ में था पूरा पावर, क्या बात करते हो? नहीं, देखिए बच्चा जब कितने तक चीफ मिनिस्टर बाद में कांग्रेस एनसीपी के हो गए, 15 साल तक शासन किया है।
बट over here, मुकेश गांधी साहब, गांधी साहब शरद पवार का नेतृत्व था ना नहीं, उसके ऊपर। ठीक है गांधी साहब, जब बच्चा रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है कि उसको भूख लगी है। जब तक बच्चा रोता नहीं, अरे ये बच्चा तो रोता नहीं। लेकिन डॉक्टर ढोने, हाँ। इसके पहले कि मैं सुशील व्यास जी के पास जाऊं, मेरे पास 2 सवाल है। नंबर 1, ये इतनी जबरदस्त व्यवस्था, इतनी जबरदस्त, वो भीड़ देखो ना सर, इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी बड़ी रैलीज, इतनी गाड़ियां, इतना डीजल, इतने लोगों की व्यवस्था, ये सब सर, दिस कॉस्ट, वो भी लास्ट 5-7 सालों से चल रहा है, एंड दिस कॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये तो कोई बड़ा ही आदमी इनको सपोर्ट कर रहा है सर, मतलब। हाँ, अज्ञात व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति है, बड़ा सपोर्ट कर रहा है। मैं वही पूछ रहा हूं सर आपसे। अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, शिंदे साहब भी मदद कर रहे हैं। शिंदे साहब ने रेनकोट बांटे, बोल रहे हैं ऐसे सुधरा हमें। सर रेनकोट शिंदे साहब भी सपोर्ट में है साहब। तो और अजित दूसरा पवार साहब भी मेरा अंदर से सवाल सपोर्ट में है, है। और दूसरा मेरा सवाल है सुशील व्यास साहब से। व्यास साहब, क्या ये इस प्रकार का आरक्षण देना, जहां तक मैं जानता हूं, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? You can't give it. He cannot give it from the OBC. He just does not have that under the constitution. Constitutionally, it has to go to parliament, as far as I know. व्यास साहब, अब आप बताएं, प्लीज। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसको अपनाकर भी, अपनाते हुए ही कोई चीज हो सकती है वैधानिक रूप से, और उसको नहीं किया गया। लेकिन अब भुने साहब थोड़े से नाराज हो जाएंगे, और पहले भी फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, मामला कोर्ट तक गया। दुर्भाग्य से उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, पृथ्वीराज जी चौहान हो या कोई दूसरे मुख्यमंत्री रहे, वो न्यायालय में अच्छी तरह से उस बात को रख नहीं पाए, और नहीं रख पाने की वजह से जो फडणवीस जी की जो मेहनत थी आरक्षण लागू करने की, वो न्यायालय के माध्यम से उसको विरक्त किया गया। और बाद में फिर एक बार आंदोलन हुआ, बार आज सुबह से ये टोमना जिसको हम मराठी में कहते हैं, और जो चिमटा भरना जिसको कहते हैं, कि शिंदे साहब से पूछा जाए कि अगर आपने पिछले साल इसका निवारण कर दिया था तो अब जरंगे पाटिल मुंबई में वापस क्यों आए? शिंदे साहब अकेले व्यक्ति नहीं थे, शिंदे साहब के साथ पूरी मंत्रिमंडल था। शिंदे उस समय फडणवीस जी भी थे, उसमें अजित पवार जी भी थे। शिंदे साहब ने जनवरी में न्यू बॉम्बे में जाकर के जरांगे पाटिल के उस आंदोलन को रुकवाने का काम किया, कुछ आश्वासन दिया। 1 महीने के अंदर उन्होंने विशेष सत्र 20 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा का बुलाकर 10% आरक्षण, उसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं, तमाम विपक्षी दलों ने भी हमारा समर्थन किया, एक मत से वो प्रस्ताव पास हुआ, 10% आरक्षण दिया जो लागू है। टेक्निकल कारणों से अब वो जरंगे पाटिल जी चाहते हैं कि हमको तो कुणबी ही मान लिया जाए। अब कुणबी मान लिया जाए, उसके लिए फिर एक कमेटी बनाई गई, शिंदे समिति आज भी है, उसका एक्सटेंशन उनके ही रिक्वेस्ट पे फिर 6 महीना बढ़ाया गया। अगर समिति को काम तो करने दीजिए, आप उस समिति की रिपोर्ट तो आने दीजिए। आज जस्टिस शिंदे खुद गए उनको बताने के लिए कि भाई करीब 58 लाख लोगों की एंट्रियां जो है हमारे पास आई, लेट अस प्लीज वेरीफाई दो एंट्रीज। तो 58 लाख कोई कम संख्या नहीं होती है, और तमाम जो वो मांग कर रहे हैं उस मांग के आधार पर जांच हो रही है। कोई वेरिफिकेशन के बिना जरांगे जी तो कह देंगे सर आपको मान लीजिए, तो कानूनी प्रक्रिया के बिना कोई चीज नहीं हो सकती। शिंदे समिति वो खुद मानते हैं, शिंदे समिति को उन्होंने कहा एक्सटेंशन दीजिए, 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। आज शिंदे समिति खुद पूरी 3 के 3 सदस्य वहां गए, स्टेज पे उनसे बात की, लंबी बात की, उनको समझाने की कोशिश की, उनको एक्सप्लेन किया कि भाई हम किस स्थिति में हैं और हमको थोड़ा समय और दीजिए कि आप जिस बात को कह रहे हैं उसको वैधानिक रूप से जब तक हम उसको कोडिफाई नहीं कर लेते तब तक कोई चीज कहना मुश्किल होगा उसको। और फिर शिंदे समिति उसका कोई निर्णय नहीं ले सकती। दे विल फाइल रिपोर्ट एंड रिपोर्ट विल गो बिफोर कैबिनेट एंड इन टर्न इट विल गो टू हाउस, दैट इज विधानसभा। अब सवाल आपने बीच बीच में कहा शरद पवार जी का, धोने साहब ने उनको डिफेंड करने की कोशिश की। धोने साहब, पर शरद पवार जी बहुत टॉलेस्ट लीडर हैं आज की तारीख में, महाराष्ट्र में शायद उनसे बड़ा नेता और उनसे अनुभवी नेता कोई नहीं है। हम उनके पूरे रेस्पेक्ट के साथ कहना चाहते हैं कि कितने साल मुख्यमंत्री थे वो तो आपने बता दिया, लेकिन आज शरद पवार जी ने नई बात कही कि तमिलनाडु में 72% है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वो करने के लिए केंद्र में आपको संविधान संशोधन करके यूनिफॉर्मिटी सारे राज्यों में लानी पड़ेगी। तो इतने साल केंद्र में मंत्री थे शरद पवार जी, भूल जाइए मुख्यमंत्री,
क्यों नहीं अपनी सरकार को उन्होंने कहा कि ये समस्या जो हमें मेरे गृह प्रदेश में है आरक्षण को लेकर, हो सकता है कल दूसरे प्रदेशों में भी हो, तो इसके ऊपर हमको संविधान संशोधन करना है। कहीं एक आध भाषण तो होगा ना शरद पवार जी का, जहाँ अपनी खुद की सरकार को उन्होंने इस तरह का सुझाव दिया होगा। आज जो हमें सुझाव दे रहे हैं तो सुझाव खुद मंत्री रहते हुए भी दिए होंगे, उनकी अपनी सरकार दिल्ली में भी थी जहां वो खुद मंत्रिमंडल के जिम्मेदार सदस्य थे। तो इस तरह की बातें ये मात्र राजनीति करने के लिए होती है। अगर रास्ता निकालना हो तो उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही रास्ता निकलेगा, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी से तो सर इसका सोल्यूशन क्या है सर, ये बताइए। अभी तो साउथ बॉम्बे बिल्कुल चोक्ड अप है, साउथ मुंबई चोक्ड अप नाउ, and there are people there. Let's be very clear. There are thousands of people there. According to one estimate, there are about 50,000 people there. It's going to be very difficult to control those people, sir. उनको आप नियंत्रण में कैसे रखेंगे? कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया ना, that's going to be terrible. Yeah, साहब, somebody will have to go there, talk to Mr. Jarange Patil and tell him, hey, listen, we are working on this. और उसके बाद जब तक के केंद्र से संशोधन नहीं लाया जाता संविधान में, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, somebody will have to tell him that. सर आप बताएं। एक कितनी बार कहा गया है उनको, जरांगे पाटिल को, फिर भी वो कहाँ सुनते हैं? मैं व्यास साहब से पूछ रहा हूँ सर। मैं बजाज जी आपकी बात से सहमत हूँ कि कल से, जब से ये आंदोलन कल सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, लगातार जो हमारी महाराष्ट्र विधानसभा की जो एक मंत्रियों की और नेताओं की उप समिति बनी है आदरणीय राधा किशन विखे पाटिल जी के नेतृत्व में, वो लगातार 24 घंटे वो इसी बात पे गहन डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से इस मुसीबत में या इस समस्या का हल निकाला जाए। आज भी सिंधे कमेटी बाद में उनसे जाके मिली, एक उप समिति की और उप समिति बनाई गई 3 मंत्रियों की, वो उस पे अलग मुद्दे पे देख रही है। तमाम तरह से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक आपने 50,000 हमारे मराठा समाज के साथियों का जो अपनी मांग को लेकर के दक्षिण मुंबई में जो जमा है उनके बारे में कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले करीब 36 घंटे हो गए, मुंबई दक्षिण में जरूर वो बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन यहाँ की स्थानीय जनता को उन्होंने बेर मिनिमम तकलीफ देने का काम किया। कोई भी ऐसी इंसिडेंट जिसको हम एंटी सोशल कह सकते हैं, उस तरह का कोई इंसिडेंट अभी तक तो नहीं हुआ। अगर शरद पवार जी कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आइए और उनको हक दीजिए, बिकॉज सब जगह ये हक के लिए झगड़ा चालू है, यहाँ पर चालू है, बिहार में जूनियर तेजस्वी यादव जी ने कहा मैं हम लोग 85% रिजर्वेशन दूंगा जब मैं सीएम बनूंगा, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं जाति जनगणना करो, जितनी संख्या उतना हक दीजिए। तो सब जगह डिमांड आ रहा है कि ये आप स्ट्रेच कीजिए लिमिट, 50% से आगे बढ़ाइए, ये आखिरकार करना ही पड़ेगा। अब शरद पवार जी अपने काल में कुछ नहीं किया, मगर अभी एडवाइस दे रहे, तो उसमें सोचने में क्या। गए बार व्यास जी जब स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया था, सबको लगा इसी के लिए बुलाया, जरांगे पाटिल के लिए। अब दोरे साहब के पास बाद में व्यास जी, इज इट टाइम? नामबिहार जी बोलिए। जाति जनगणना मैं समझता हूँ बड़ी छाती ठोक करके तेलंगाना जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री ने कहा यस हमने कर लिया है। मैं बड़ी विनम्रता से जानना चाहता हूं मेरे साथियों से, जो विशेषकर कांग्रेसियों से, कि क्या उन्होंने ये जो कहा है उसको लागू किया? जनगणना के अनुसार के आरक्षण की देने की उन्होंने सुझाव या प्रस्ताव कोई सामने रखा है क्या? ठीक है, कहना भाषण देना एक अलग चीज है, ये वैसी बात है। तो जैसे अभी आपने जिन्हें एक हमारे नौजवान नेता बिहार के नेता विपक्ष है इस समय, और थोड़े दिनों पहले उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी का नाम लिया। भाई उनकी तो माताजी मुख्यमंत्री रही, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो खुद सत्ता में रहे, उप मुख्यमंत्री। किसने रोका था भाई उस समय? कोई एक प्रस्ताव बता दीजिए, कोई एक प्रस्ताव माता पिता या पुत्र के द्वारा कहीं हो, या आरक्षण से संबंधित जो 80% की जिक्र कहीं करते हो। खाली जब विपक्ष में आते हैं तो इनको ब्रह्म ज्ञान आता है कि इस तरह की बातें, सत्ता में आते हैं तो सब भूल जाते हैं, तब उनको मैं और मेरा, इसके अलावा बात नहीं होती। और आज जो लोग घूम रहे हैं वोट चोरी का, वो तो आप जानते हैं कि एक हवाई बातें हैं। और उन्होंने बजाज साहब एक बड़ी, मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहना चाहता हूं कि बार बार पूरे देश में एक बात कही गई कि ये जो SIR हुआ उसमें एक भी नाम इंक्लूड नहीं हुआ। अरे भाई वो तो जो पुराने 7 करोड़ 90 लाख लोग थे उनको दिया गया था मौका कि आप अपना वापस एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, तो 98 पॉइंट समथिंग लोगों ने भरा।
आज मैंने अभी अभी आपका शो चालू है, उस समय मैं इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट अपलोड देख रहा था। 13,33,000 लोगों ने नया फॉर्म 6 भर के अपना नाम इंक्लूड करने के लिए वहां फॉर्म भरा है। दैट विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स विद 7 डेज। एंड 2,97,000 2,97,000 लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया, भाई मेरा नाम डिलीट हो गया या मेरा नाम गलती से नहीं है, वो नहीं, तो इसका मतलब करीब करीब 16 लाख लोगों के एप्लीकेशंस आए हैं। दैट विल बी डिसाइडेड आउट ऑफ 65। अब 65 लाख में से 22 लाख तो भर चुके, उनका नाम कैसे आप डिलीट इंक्लूड करवा लोगे? तो अब रही बात 43 लाख में से 16 लाख लोग ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन करके आ चुके हैं सामने कि प्लीज इंक्लूड अस एंड दैट विल बी डिसाइडेड। तो ये एक गलत नैरेटिव फैलाना कांग्रेस और उनके साथियों का, इंडिया गठबंधन वालों का बात हो गया। लेकिन सर आपसे मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूं, चलिए वो वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी यात्रा या जो भी है, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, a lot of people are coming there. But all I am asking you is, if you remember on Friday, which is yesterday, even the courts were closed. Court shut down because all the lawyers said, hey, listen, we've got to go home. How do we get home? So what happens on Monday? What is going to happen on Monday, sir? Because as far as South Mumbai is concerned, South Mumbai का तो मतलब जकड़ लिया है ना बिल्कुल। देखिए सर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ऊपर हैं, बाकी अपना दादर रेलवे स्टेशन पर हैं, बाकी जो अपना लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर भी हैं, बाकी हर जगह है। और आज तो जुहू चौपाटी पर भी थे सर सब लोग। वहाँ पे देखो अमिताभ बच्चन का घर देखो, फिल्म स्टार देखो। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्यास सर, दिस शुड कंसर्न यू बिकॉज you and both Mr. Gandhi, both of you are effectively part of the government. Sir, गणेश उत्सव चल रहा है। Our police is already so stretched. इतनी ज्यादा उनकी ड्यूटी है, उन बेचारों की इतनी ज्यादा जिम्मेवारी है, क्या क्या देखेंगे सर? कितने गणेश मंडल है यहाँ पे जहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है, और साथ में ये 50-55 हजार लोग आ गए हैं। आप मुझे बताइए सर, इज इट फेयर कि गणेशोत्सव के वक्त यहाँ पर ये लोग आ गए? आप मुझे बताइए सर, बोलिए व्यास जी। बजाज साहब, आंदोलन किसी मांग को लेकर हो रहा है, आंदोलित व्यक्तियों के बारे में मैं कोई इस तरह की टीका टिप्पणी करूं तो ठीक नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। सरकार लगातार 24 घंटे इस समस्या का हल निकालने में लगी हुई है। सरकार का मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, और विशेषकर जो हमारी 12 सदस्य उप समिति है, राधा किशन जी, विखे पाटिल जो एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है, उनके नेतृत्व में लगातार लगे हुए हैं। और हम देखेंगे कि शायद सोमवार का दिन भगवान चाहे तो नहीं भी आए, उसके पहले हम इसी समस्या का हल निकालेंगे। दोरे साहब, क्या जो शरद पवार साहब का वही लास्ट एक फॉर्मूला है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आकर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए? महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, सब जगह मांग है कि रिजर्वेशन को बढ़ाइए, रिजर्वेशन को बढ़ाइए। 50% के सीमा बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी का भी पूरा एक वचन है कि 50% से ऊपर लिमिट निकलना। तो इसके संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। दोरे साहब, लिखा नहीं है कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए, ये ऐसा कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि 50% के ऊपर रहना नहीं चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी नहीं बोल सकेंगे, ये उनकी टिप्पणी थी। तो वो उस बात को पकड़ के सब चला रहे हैं। और फिर तमिलनाडु में 74% है, वो कैसा है, वो किस आधार पे है, ये भी बोलिए। तो संविधान में नहीं है ऐसा कि 50% के ऊपर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी को अगर रिजर्वेशन देना है ओबीसी में, तो उसको वो उसके अधिकार केंद्र सरकार के हैं। और आप शरद पवार साहब जो बोल रहे हैं वो बराबर है कि ये केंद्र सरकार कर सकती है। रहा सवाल कि शरद पवार साहब ने इतने दिन सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं किया, राज्य में रहते हुए और केंद्र में रहते हुए। तो हकीकत ऐसी है कि जब से इस देश में और हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी पक्ष पार्टी है और ये गरीबों की विरोधी पार्टी है। तो इनके राज में किसानों के हाल बहुत खराब हो गए। इनके राज में किसानों ने बहुत ज़्यादा आत्महत्या की है। और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ये सरकारी आंकड़े हैं कि बेरोजगारी है 45 साल में सबसे ज़्यादा मोदी जी के राज में हुई है। तो इनके राज में बच्चे बेरोजगार हुए हैं, किसान की हालत खस्ताहाल हुई है, इसीलिए लोग परेशान हो गए। और फिर लोगों को लगा कि अपने को भी, हमारे पास पैसे नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे, फीस दे नहीं सकते। तो ये रिजर्वेशन की बात तब से शुरू हुई। और जब मैंने इसके पहले बताया कि जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ दूध पिलाती है,
जब बच्चा नहीं रोता है तो उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है। तो जो सरकार माँ बाप है उस जी। वक्त बच्चे रोए नहीं कि हमको रिजर्वेशन दो। अभी बच्चे रो रहे हैं क्योंकि बच्चों को भूख लगी है, तो इसीलिए बच्चे रो रहे हैं। तो माँ बाप सरकार ने उनके सुनने को ना, उनको दूध पिलाने को ना। ये है शरद पवार साहब के वक्त किसने आवाज, कोई मोर्चा निकला था कि रिजर्वेशन दो, कितने मोर्चे निकले थे भैया? डिमांड किए थे। सर इस तरीके से नहीं निकला था कभी। नहीं ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं नहीं निकला। निकला था सर। ऐसा कभी छोटे नहीं मोटे निकला से था। सब ऐसा देखिए, कभी सबसे नहीं निकला था पहले सर। भैया नहीं वो क्यों जो ऐसा क्यों मराठा, नहीं निकला था राजीव जी? जी। अरे, व्यास जी बताइए कितने बड़े बड़े मोर्चे निकले थे उस टाइम में? सर जब आज का- असेंबली होती थी, वो 16 में जब निकले थे असेंबली का मोर्चे, सेशन 16 होता था में। मुंबई में या नागपुर में, तब लोग आ जाया करते थे थोड़ा बहुत एजुटेशन करने के लिए। नहीं, सर, बड़े-बड़े मोर्चे निकले, आप अदरवाइज इट उनकी नेवर सर, यूज्ड टू बी उनकी देयर। आवाज References देखिए सरकार ना। तक पहुंचती सर नहीं याद थी। है सर, आई वाज हियर सर 93 आई केम हियर, आई वाज द एडिटर ऑफ द डेली फ्रॉम 93 टू 99। नहीं, I have seen on the TV. So sir, it is not there. No. So the future मुकेश गांधी साहब is जितना संख्या उतना हक, जो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के हर मन से बोल रहे हैं, Meanwhile- जितना संख्या उतना हक, यही होने वाला है। How Sir- do you see that? Sir, meanwhile, Amit Shah साहब has just sought the blessings of लाल बाग का राजा। लाल बाग के राजा पे अमित शाह साहब आए हैं, उनकी फुटेज भी चल रही है। Yes, Can and we- he can we show met that Mr. please? Vinod Tawade also, and he discussed about जी। vice president polls of Maratha Samaj and Bihar elections. ये जरा मिस्ट्री समझाएं मुकेश गांधी साहब, जो प्रदीप जी ने अभी बात कही है कि बार बार अमित शाह साहब जो है विनोद तावड़े साहब का नाम लेते हैं कि यार वो मराठा रिजर्वेशन के बारे में मैंने विनोद तावड़े जी से बात करी है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में मैंने विनोद तावड़े जी से बात करी है। क्या देवेंद्र फडणवीस जी को नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है ये मुकेश गांधी साहब? नहीं, अभी विनोद तावड़े जी को सेंट्रल कमिटी में रखा हुआ है, इसलिए जो भी फर्दर डिस्कशन के लिए एक सेकंड आदमी होना ही चाहिए हर स्टेट में। वो उनके कारण उन्होंने विनोद तावड़े को इम्पोर्टेंस दिया है। Do you believe that? जी को Do you actually कोई भी believe that? मार्जिनलाइज नहीं, वो करने का कोई सर, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी मराठा है, ये विनोद तावड़े देखिए मराठा है, हमारी पार्टी सिर्फ सेठ जी और भट्ट जियों की नहीं है। तो ये दिखाना चाहते हैं। वो भी अमित शाह है, नहीं वो भी क्या बोलते उसको, बनिया आदमी है, बनिया। हाँ व्यास जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो व्यास जी। नहीं, मेरे दोस्त धोने जी ने कुछ मिनटों पहले कहा था, जो मराठा में महाराष्ट्र में रहता है या पैदा होता है वो मराठा, तो मैं भी महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, तो आप मुझे तो मराठा बड़ी है? खुशी हुई कि आगे चल के मेरे भी आने वाली पीढ़ियों को रिजर्वेशन में कहीं न कहीं मांग करने का मौका। नहीं, नहीं, आप उन्हीं मराठा का- बोल जो सकते हैं, मराठा जात है, नहीं है सर तावड़े जी उन्हीं मराठा। का नाम लेगा, जो बनिया है उसका नाम नहीं लेगा। यानी आप विरोधाभास क्या है? आप एक चीज नहीं, पे खड़े रहिए ना विरोधाभास नहीं भाई। सर, अपना जो राष्ट्रीय गीत है। देखिए, नहीं, नहीं, तावड़े सर, जी मैं व्यास मानता साहब। हूँ राष्ट्रीय महामंत्री है, और जहां तक उपराष्ट्रपति वगैरह का चुनाव है वो राष्ट्रीय प्रश्न होता है, इसलिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामंत्री को वो असाइनमेंट किया होगा, तो राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारे अपने राष्ट्रीय महामंत्री। I hope Mr. सर, Shinde agrees एक with you. मिनट, एक मिनट। I hope ये Mr. अपना Shinde also राष्ट्रगीत agrees जो with you. है, राष्ट्रगीत में क्या है? पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। क्या है? पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। तो सिंध ले आओ ना पहले। नहीं, सुनिए, तो सिंध लाना पड़ेगा ना सर। नहीं, तो मेरा कहने का मराठा है ना, क्या है? पंजाब एक प्रांत का नाम है, जी सिंधु दुरुस्त एक प्रांत का नाम है, Correct. गुजरात प्रांत का नाम है, वैसा मराठा एक प्रांत का नाम है, महाराष्ट्र है। मगर दोनों साहब, आप तो एंथम भूल गए। आप आजकल आप आरएसएस के एंथम गाने लगे। सर दोनों साहब, आप आरएसएस के एंथम गा रहे हैं अभी। डॉक्टर साहब ने आशा लगा के तोड़ दी। डीके शिव कुमार विधानसभा में आरएसएस का एंथम गाते हैं। ये पूरा केस में देखा है। आप नहीं, अपना सर, anthem, देश का एंथम भूल के आरएसएस का एंथम गाना शुरू कर दिया आपने। नहीं, वो तो देखिए, चिढ़ा मैं रहे तो थे कल इनको। गुजराती पेपरों में सर, न्यूज दे देता हूँ कि हमारे कांग्रेस वालों ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो है गुजराती भी है, वो भी मराठे की तरह हक मांग सकते हैं। वेरी गुड मराठा सर। वो सब नहीं, महाराष्ट्र उनको में रहने मिलेगा, वाला बिहार मराठा, आपको उनको मिलेगा। सर, पेशवा जो थे, एक मराठा पेशवा, लाख मराठा, मतलब ये बाजीराव हुआ। पेशवा जो थे, एक गुजराती एक सब मिनट, मराठा। एक मिनट, Correct. बाजीराव एक गुजराती पेशवा सब पे जो भारी, पेशवा, मतलब बिहारी। क्या बात है? पेशवे- हर गुजराती हर मराठा। Right, so gentlemen, we really have run out of time. मुकेश गांधी सर, साहब ने एक मिनट हाँ बोलिए एक आखिरी हाँ बात प्लीज बोलूंगा प्लीज बोलिए। कि जो पेशवा है, बाजीराव पेशवे, और जो पेशवे है वो ब्राह्मण है, लेकिन उनको क्या बोलते हैं? मराठा। तो वो ब्राह्मण है, लेकिन महाराष्ट्र में तो इसलिए मराठा बोलते हैं, महाराष्ट्र के बाहर जब भी जाते हैं तो बोलते हैं मराठा। तो ये है, तो महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा है। मराठा कोई जात नहीं है, ये प्रांतवाचक नाम है,
और जो खुद को मराठा बोलते हैं आजकल, जो शान्यू कुड़ी वगैरह कुछ नहीं रहता। शिवाजी महाराज शान्यू कुड़ी नहीं थे तो राणे कहाँ से आ गए शान्यू कुड़ी? सब तो कुंजी सर है। मेरे को तो लगता है कि इसमें रिजर्वेशन ही चला जाएगा, पूरा सब एक हो जाएंगे। सर मैं आपसे मुकेश गांधी साहब आखिर में चलते चलते मेरा ये आपसे- कहना है सर, जो उच्च वर्णीय लोग हैं उनको हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहिए। ब्राह्मण, मैं I would like to गुजराती, ask Mr. मारवाड़ी, मुकेश गांधी। इनको इतना ही % रिजर्वेशन। डोने साहब वन सेकेंड, आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मुकेश गांधी साहब, सुशील व्यास जी और डॉक्टर ढोने, हम लोग रिजर्वेशन के लिए एजुटेशन कर रहे हैं, हमें 80% चाहिए, 85% चाहिए, 90% चाहिए। अरे 150% ले लो यार, जैसे ट्रम्प के टैरिफ हैं वैसे ले लो। टैरिफ का मतलब तारीफ भी होता है, तारीफ मतलब टैरिफ। नाउ मैं आपसे जानना चाहता हूं मुकेश गांधी साहब, सर नौकरियां कहाँ हैं? वेयर आर द जॉब्स? अरे पहले जॉब्स तो क्रिएट करो। वो आप रिजर्वेशन लेके करोगे क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आज आपके रिजर्वेशन मिल गई, चलो मिल गई, व्हाट विल यू डू विद इट? आप मुझे पूछिए सर इसके बारे में। हाँ बोलिए सर, सर, आप सर, बताइए। इसमें क्या है, मुझे इसमें क्या पूछिए। है कि ये रिजर्वेशन जो है वो अपने समाज को बहकाने का, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, करने नहीं, का नहीं, एक काम है। नहीं, बाकी नहीं, हक नहीं। देकर के नौकरियों का प्रबंध करने का, व्यवसाय में डालने का। और इतने समृद्ध मराठा लोग हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो बैकवर्ड मराठा है इकोनॉमिकली और सामाजिक, उनको अपलिफ्ट करने के लिए इनकी कितनी संस्थाएं क्या काम कर रही है उसका ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए। जी, लेट मी गो टू डॉक्टर ढोने। डॉक्टर ढोने साहब, इसके पहले कि आप बोले, संभाजी भिड़े साहब बोलते हैं कि जैसे शेर को शिकार करने की ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे मराठा को अपना ख्याल रखने की कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा संभाजी भिड़े ने कहा है। अब आप बोले सर, प्लीज गो अहेड। संभाजी भिड़े तो वही है सर जो पहले लोगों ने जो शुरुआत की, इनके जो वंशज है, इनकी जो विचारधारा हो के गया लोग शुरू। हैं, इन्होंने कहा था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। ये इनके वंशज लोगों ने कहा, इनके विचारधारा के लोगों ने। चल, पहला था कि- अच्छा, अब आप बताएं नहीं, सर। सुनिए सुनिए कि वो बोलते हैं कि नौकरी कनिष्ठ है और सब खुद नौकरी में चले गए, खुद नौकरी करते। वो लोगों को बहकाने का काम करते हैं और लोगों को मराठा बोलो तो लगता है नहीं नहीं हमको मराठा कुछ अलग ही है। इस तरह की वो लोगों को फूट डालने के लिए बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। उनकी नीयत खराब है। बट आरएसएस का गाना Where are the jobs? आरएसएस का गाना कांग्रेस के लोग गाने लगे। नहीं नहीं नहीं, गाने नहीं लगे। आप भी सीखे धोने साहब। चिढ़ाने के लिए बोला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिढ़ाने के लिए बोला था। अरे चिढ़ाने के लिए मिला पूरा देश के सामने। आरएस के तो पूरे उन्होंने मजाक में बोला, उपरोधिक जो शब्द है मराठी में, हिंदी में मुझे सूझ नहीं रहा है शब्द, उपरोधिक जो व्यंग्य, बोलते हैं व्यंग्य, उस व्यंग्य। हाँ? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, पूरा गाना पूरा एंथम गाया है डीके शिव कुमार ने। लेकिन अच्छा ढोने साहब, ये तो बताएं, जब नौकरियां हैं नहीं तो नहीं, रिजर्वेशन नौकरी का क्या कहाँ, उस करोगे? पे आता हूँ सर, उस पे आता हूँ। देखिए सिर्फ नौकरी नहीं रहती, एडमिशन रहता मैं है। बजा साहब एक विनंती बोलिए, है, बोलिए, खाली बोलिए आधा सर। मिनट चाहता हूँ। बोलिए सर। मैं नॉर्मली बीच में बोलता नहीं, लेकिन मेरे दोनों साहब ने कहा उनको उत्तेजना दिलाने के लिए सदन में हमारे वो उप मुख्यमंत्री ने आरएसएस का उदान को गाया। आपको पता है दोनों साहब, सदन में शायद मैं तो नहीं गया हूँ, कभी कोशिश की थी, हार गया। आप अगर रहे हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं। सदन में यील्डिंग जिसको कहते हैं, किसी को उत्तेजना दिलाना, ये गलत चीज है। किसी को आप यील्ड करने के लिए कोई चीज नहीं कह सकते। अगर आपने कह रहे हो तो इसका मतलब ही वाज यील्डिंग टू अपोजिशन पीपल। नहीं, उन्होंने माफी मांग ली है सर, उन्होंने माफी मांग ली डिलीट है कर बाद देना में। चाहिए सदन की प्रोसीडिंग से, नहीं, माफी भले वो मांग ली है। मुख्यमंत्री हो। बस अब आप कहिए वजह से। जी बोलिए सर, नहीं बोलिए सर, बोलिए। रिजर्वेशन का जो है सिर्फ नौकरियों में नहीं रहता है। आपको रिजर्वेशन के फायदे बहुत सारे हैं। मैं खुद भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मुझे मालूम है। और मैं जब मेरी एडमिशन हुई थी एमडी में, तो जब एससी की सीट रिजर्व रहती है तो एससी का कैंडिडेट नहीं आया तो एसटी को जाती है, एसटी की सीट एससी को जाती है। और वो दोनों कैंडिडेट अगर नहीं मिले तो वो इंटर सी मेरिट बोलते हैं, उसमें वो ओबीसी को चली जाती है। तो उस सीट में एससी की जगह एसटी को गई, एसटी का भी नहीं मिला तो फिर वो ओबीसी को गई। और मेरी आखिरी में एडमिशन मेरी एमडी में हुई। मेरे मिसेस की भी वैसी एडमिशन विजय एंटी के जगह पे ओबीसी को चली गई सीट आखिरी में, क्योंकि हम इतने एकदम मेरिट वाले स्टूडेंट है नहीं, हम थोड़े आखिरी वाले हैं। तो हमारी जो एडमिशन हुई वो जगह तो सीट विजय वाले जो है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों ने उनकी सीटें आप लोगों ने उनकी हड़प नहीं कर ली नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ऐसा और नहीं। नहीं तो क्या? वो जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, नौकरी में नहीं बिल्कुल होता सर। है।
नौकरी में नहीं होता सर उसके है। ऊपर जो राजीव जी, नोमैडिक आप ट्राइब्स कहाँ हैं, देते हो? वंचित जाति नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं, उनके ऊपर कभी बात करेंगे सर? किस तरीके से आपने उनकी सीटें खाली हैं आप सब लोगों ने मिल करके? बेचारी जो दांगड़ समाज है, उनका एक भी एमपी नहीं है अभी तक। पूरे 1947 से लेकर के आज तक एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना दांगड़ समाज का। इसके बावजूद क्या अहिल्याबाई होलकर कहा जाता है कि वो दांगड़ समाज से थी? चलिए कोई बात नहीं, बट वील टॉक अबाउट दैट सम सर ऐसा है, हमारे जो शाहू महाराज है, शाहू महाराज ने उनके साथ रिश्तेदारी किए थे, आपको शायद पता नहीं होगा। जी सर, मैं काश शाहू महाराज अभी जिंदा होते तो शायद आज स्थिति अलग होती। हाँ। अभी है नहीं, वो क्या करें? अभी तो आप ही लोग हैं, आप ही लोगों के साथ डील करना पड़ेगा सर। लेकिन एक चीज तो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, आपके साथ सर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर, आप अपने लीडर से बात करें, सरकार से बात करें, प्रशासन से बात करें, किसी भी तरह इस समस्या का हल निकालें। ये जो मराठा समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, दे मस्ट बी वेरी नाइस पीपल, लेकिन कुछ मालूम नहीं है सर, इतनी भीड़ में कोई भी अनटूवर्ड एलिमेंट घुस सकता है। मेरा ये कहना है कि इतने ज्यादा लोग गणपति के वक्त, गणेश उत्सव के वक्त यहाँ पर आना मुंबई शहर के लिए ठीक नहीं है सर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट इज नॉट राइट। मेरी विनती है आप सब लोगों से, प्लीज आप बात करिए। सर इस आंदोलन में शिंदे साहब का अंदर से समर्थन है, सिर्फ शिंदे साहब का अंदर से है सर। चलिए, वो व्यास जी बताएंगे। राज ठाकरे जी ने बोला कि शिंदे साहब जवाब दे। लास्ट ईयर शिंदे साहब ने ठाणा में रोक के क्या एग्रीमेंट किया था, अगर वापस मुंबई में आए तो शिंदे साहब को जवाब देना पड़ेगा। राज ठाकरे साहब। नाम्बियार जी, जो प्रश्न आदरणीय राज ठाकरे जी ने उठाया उसका उत्तर शिंदे साहब दें, उसके पहले हमारे वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय चंद्रकांत पाटिल जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने दे दिया कि शिंदे साहब ने जो जरांगे पाटिल और उनके तमाम ने लोगों को जो आश्वासन न्यू मुंबई के मीटिंग में पिछले साल दिया, उसको उन्होंने 100% पूरा किया। और जो जो बातें उनसे कही गई वो उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र बुला करके 10% जो टिकने वाला आरक्षण है वो दिया, और वो टिका हुआ है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। इससे ज्यादा शिंदे साहब ने ना तो आश्वासन दिया But so he should ना be happy उन्होंने now. कोई बात कही थी। So as far as Mr. Jarange Patil is concerned, he should be very happy. Why is he unhappy? Why is he being made to be unhappy? That's what I want to know. Because at the end of the day, there is somebody who is supporting him. Let's be very clear. As you said very rightly, Mukesh Gandhi Sahab and Done Sahab and of course Vyas Sahab will agree, because he didn't say anything on this subject, of course. This costs money, sir. ये इस किस्म का आंदोलन, इतने ज्यादा लोगों को लाना, उनका देखभाल करना, इतनी गाड़ियां लाना, डीजल का पैसा, पेट्रोल का पैसा, बाकी हर चीज का पैसा, सर ये कहां से आ रहा है? करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं सर? ये दिस कैन नॉट बी डन। राजीव जी, इससे आगे मैं जाकर के मैं ये कहता हूँ कि ये हिंदू त्योहार में अनरेस्ट फैलाने का एक बड़ा षड्यंत्र भी है। उसके बारे में भी बात मेरा करेंगे सर, स्पष्ट मानना है, मेरा स्पष्ट मानना है। उसके बारे में भी बात करेंगे सर। उसके ऊपर नॉर्थ की चैनलों ने बहुत टीका टिप्पणी की है। सब चैनल दिखे हुए हैं सर। गांधी जी सब नेशन नाउ नहीं रहते, सब पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं रहते, सब नहीं सर, पर आप रमजान में क्यों नहीं लाते ऐसी मोर्चाबाजी? हमारे यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा सर, कोई वाजपेयी नहीं है सर हमारे यहाँ। बजाज साहब, एक विनम्रता से मैं, आपने जो बात कही जी, पैसे वगैरह के मामले में, मैं किसी पर स्पष्ट आरोप तो नहीं लगाता, लेकिन कल सुबह 10 बजे आजाद मैदान के स्टेज पर आदरणीय मनोज जरांगे पाटिल जी का आगमन हुआ और 1:30 बजे तक, मतलब सिर्फ 2.5 घंटे की आप वीडियो फुटेज देख लीजिए। जी। किस दल के एमपी, किस दल के एमएलए उनके बगल में आके बैठे थे, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। मैं किसी पे व्यक्तिगत कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप देख सकते हैं नहीं, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल बराबर है एमएलए उनके राइट लेफ्ट में बैठे थे, आप समझ सकते हैं। व्यास साहब, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ओरिजिनल शिवसेना जो भी है, ये सबका समर्थन जरांगे पाटिल साहब को है। नहीं, ये तो खुली बात थोड़ी है, हम उनके समर्थन में हैं, हम तो खुला समर्थन करते हैं, हम तो स्टेज पे भी जाएंगे और हम डॉक्टर ढोने और मुकेश गांधी साहब, कर रहे हैं आपको, डॉक्टर ढोने और मुकेश गांधी साहब, यहाँ महाराष्ट्र के मराठी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा विघटन का काम हो रहा है, आपको बैलेंस करके बैठे हैं। ये मतलब सुशील व्यास साहब जो हैं वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन का रोल निभा रहे हैं, शोले वाला, मौसी को बोलते हुए कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हाँ वो जैसी शराब पीना छोड़ देगा ठीक हो जाएगा साहब। Anyway, gentlemen, thank you very much for joining us. Great pleasure talking to you.
But I'll tell you what, before you go, हो सकता है डॉक्टर ढोने को ये बात अच्छी ना लगे. I'll tell you something. Mr. Modi has played this brilliantly. Let me tell you this, कि ट्रंप का नाम लिए बगैर जो मोदी साहब ने आज की तारीख में टैरिफ को लेकर के, अमेरिका ने जो टैरिफ्स इंपोज किए हैं इंडिया पर, जो उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ है सर. Whether you like Modi or you don't like Modi, let's be very very We clear. salute Modi. I am proud to be an Indian. और मोदी साहब को जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ढोने साहब सुनने वाली बात है, गांधी साहब, व्यास साहब, वो कहता है, क्या नाम है उसका, नवारो. He is the chief economic advisor to Mr. Trump. He said this is Modi's war. यूक्रेन रशिया की जो वॉर है, मतलब मोदी साहब लड़ाई करवा रहे हैं, मोदी साहब फाइनेंस कर रहे हैं, और मोदी साहब ही जो अकेले मोदी साहब हैं जो शांति करवा सकते हैं. और इनके ट्वीट में मोदी जी का फोटो डाला है. ये पहली बार है कोई इस प्रकार से यूएस की अथॉरिटी मोदी जी का फोटो अपने ट्वीट में डाल रहे हैं. कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, व्यास साहब मजाक उड़ा रहे मोदी जी की, और डॉक्टर ढोने और गांधी साहब, अरे सर सुनने वाली बात है मोदी जी के लिए ही इज टेरिफिक लीडर. सर. नो सर, मैं कुछ और बोल रहा हूँ. अगर 56 इंच का सीना, भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रोका, अरे ट्रंप ने 56 रोका, इंच तो का दूसरे देश सीना, का क्या करेंगे वो? अरे सर 56 इंच का सीना अगर नहीं था तो अब हो गया होगा. Let's be very clear. अब हो गया होगा. Let's be very clear. That means नहीं, Mr. नहीं, Modi नहीं, is the most नहीं, powerful अरे leader मजाक कर in रहे the हो. world. अरे मजाक कर रहे हो, आप समझे नहीं उनकी बातों को. Right, आप sir. मजाक कर रहे हैं. बिल्कुल. Thank you, thank you. जैसे डीके शिवकुमार साहब मजाक कर रहे थे. करेक्ट. Thank you very much, gentlemen. Namaskar. Great pleasure talking to all of you. Thank you so much. But that was nice. That was really and truly nice. But the only thing is, at the end of the day, I am reasonably certain. I think Mr. Fadnavis should go out there and talk to him. उनसे बात करें और उनको बोलेंगे भैया आप बोरिया बिस्तरा बांधिए, पैकअप करिए, आप वापस जाइए. क्या है कि सर मुंबई पुलिस विल नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर दिस. लेट्स बी वेरी क्लियर, दे आर ऑलरेडी सो स्ट्रेच्ड. उन सब की गणपति की जो छुट्टियां हैं वो सारी कैंसिल कर दी हैं. प्रदीप जी, Sir, they are totally outnumbered. The Mumbai police is outnumbered as on today because the number of Maratha in Azerbaijan, in South Mumbai, are so huge that our police force right now cannot take care of them. सर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर सब लोग बैठे हैं. बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, they have also been occupied. There are so many areas which have been occupied. I don't know if the courts will reopen on Monday. It is not, sir, you cannot handle such a crowd, especially at this time during Ganpati. और वही देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि भैया त्योहार को तो बर्बाद मत करो. Anyway, I hope some sense prevails. I hope some good sense prevails. And at least Mr. Eknath Shinde, Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Ajit Dada Pawar are able to talk to Mr. Jarange Patil and convince him कि भाई आपकी एक एक डिमांड हम लोगों ने मान ली है, और क्या चाहिए, बाकी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. What do we do? Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहें नेशन नाउ. We'll of course be back with you tomorrow. और यहाँ तक कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. Please do subscribe to the channel. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. And do send in your comments, please. Please do send in your comments. We would love to read them. We would love to know what you think. That's it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.